The company, headed toward the world with the right principles. The company that grows with its customers and shares generously. We are Atomy. Atomy, which has been growing ever since its establishment in 2009, achieved 2.2 trillion Korean won in global sales in 2021 and surpassed 16 million global members. Atomy's #1 goal of going beyond customer satisfaction to customer success continues to be its top priority to this day. Providing good quality products at reasonable prices, Atomy's competitiveness lies in the nature of distribution. The absolute quality and absolute price product philosophy that Atomy has practiced since its inception is included in all of its products, such as health functional foods, beauty, living, food, fashion, home appliances, and more. Hemohim, which has been the top seller in its industry for 7 consecutive years, has passed 1.7 trillion Korean won in cumulative sales. It has gotten international patents in 21 countries and is forging a unique new path for health functional food products. Absolute Skincare, which has become one of the best-selling cosmetics in the industry with sales of 100 billion Korean won every year since its launch, was recognized for its advanced technology with King Sejong Award from the Korean Intellectual Property Office in 2021, for the first time in the cosmetics industry. The Fame, another luxury cosmetic product reborn with upgraded ingredients and technology, is also loved by consumers as it reflects Atomy's product philosophy. Atomy is practicing customer-centered management in all of its corporate activities, and this was recognized by becoming the industry's first to acquire customer-centered management certification for 2 consecutive years. Starting with the US branch in 2010, Atomy is a global company which opened 22 branches in Asia, South America, Oceania, and Europe, with 16 million members worldwide. Atomy opened branches in New Zealand, Turkey, the United Kingdom, Kazakhstan, and Kyrgyzstan, and is planning to open 20 more branches within the next 5 years. Atomy's GSGS strategy, which stands for Global Sourcing Global Sales, allows the supply of products that align with the absolute quality and absolute price philosophy through Atomy's global sales network. Atomy's Success System, in which the company runs all seminars, allows any member to succeed regardless of individual ability. This is the driving force behind Atomy's distinctive growth. The next generation of online and offline distribution broadcasters, which presents Atomy's vision to members around the world regardless of time and space. Entertainment and media, which converges business and culture. Atomy provides the vision of a global success system which transcends time and space by providing a variety of services. Atomy provides various support measures for partnering companies such as cash payment within 1 week from delivery, interest-free operating fund loans, and joint quality management systems, among others. These create a culture of accompanied growth. Sharing,
is a mission that all companies must fulfill. Atomy's executives, employees, partnering companies, and members all practice sharing together to improve the lives of all members of society. Whenever sharing is needed around the world, global branches will be united to support happiness for all. The company that holds true to its principles while creating a new distribution culture. The company expanding globally with the trust of people around the world. The company that dreams of customer success while moving beyond customer satisfaction. The company that cherishes the spirit. We are proud Atomy. 구독, 좋아요. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी को। और आई होप कि मेरी आवाज आ रही होगी, आप लोग सुन पा रहे होंगे। और इमीडिएटली मीटिंग स्टार्ट हो गया था। मैं थोड़ा कुछ कॉल चल रहे थे, राइट। आप लोग इमीडिएटली अपने अपने टीम को इनवाइट करना स्टार्ट कीजिए। जो जो रह गए हैं वहां तक आप उनको इनवाइट कीजिए, क्योंकि आज बात इन्विटेशन की ही होने वाली है। बात इन्विटेशन की होगी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री के अंदर इन्विटेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि बिना उसके आप इस बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं कर सकते, राइट। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? जस्ट अ मिनट। क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है राकेश सर, क्लियर है, राइट क्लियर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए, जो बातें आज करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके बिना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। इन्विटेशन नहीं पता है बिजनेस के बारे में, लोगों को कैसे बताया जाए, इनिशिएट कैसे किया जाए। अगर इस पे चर्चा नहीं करेंगे, इस पे हमें अगर मास्टरी नहीं करेंगे तो इस बिजनेस में सर्वाइवल भी मुश्किल है। आप चाहे कितने भी बड़े नेटवर्कर हो, आपकी टीम हजारों में हो, आपके फोन पे 5,000 कॉन्टैक्ट्स हो, लेकिन अगर आपको इन्विटेशन करना, इन्वाइट करना नहीं आता है तो आप इस इंडस्ट्री में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। करना नहीं करना, होना नहीं होना, ये सब तो बात की बात है। सर्वाइवल मुश्किल है। तो इस बिजनेस में सर्वाइवल के लिए, और इस सर्वाइवल में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कोई मदद भी नहीं कर पाएगा यहाँ। मदद इन द सेंस कि जब बात इन्विटेशन की आती, इकलौता एक ऐसा एक ऐसी इन्विटेशन, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम लोग आपको ट्रेंड कर सकते हैं, आपके लोगों को इनवाइट नहीं कर सकते। डिफरेंस समझिएगा। बाकी सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, आप अपनी टीम को इनवाइट किए, टीम आपकी आ गई, हमने प्रेजेंटेशन दिखा दिए। फॉलोअप करने की बात हुई, फॉलोअप कर दिया। प्रोडक्ट डेमो देने की बात हुई, डेमो कर दिया। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करने की बात हुई, ट्रेनिंग की हमने कर दी। वो सारा काम एक अपलाइन यहाँ पे कर सकता है, लेकिन ये एक चीज जो है वो मिस हो जाता है, वो है इन्विटेशन। इन्विटेशन के अंदर भी आपको हम लोग सिखा सकते हैं। बहुत ही एक इनिशियल लेवल पे हर लोग करता है कि आप अपने लोगों से बात मत करो, आप मुझे लाइन पे लो, ठीक है। आपने देखा होगा, और ऐसा एक प्रोसेस हुआ करता था, आज भी लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। जब कोई नया व्यक्ति इस बिजनेस में आता है, तो जब नया व्यक्ति बिजनेस में आता है, जब हम लोग लिस्ट बनवाते हैं, एक प्रोसेस की बात मैं कर रहा हूं, जब लिस्ट बनवाते हैं तो उसमें जब सेलेक्ट करने बोलते हैं कि ऊपर के टॉप 5 प्रोस्पेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, और उनको जब इनवाइट करना होगा मीटिंग्स के लिए, तो आप इनवाइट नहीं करोगे, वो इनविटेशन मैं करूँ, ठीक है ना। उसके बाद ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिनके बारे में जिनके लिए आप इन्विटेशन कर रहे हो, उनके बिहाफ में आप बात करते हो, राइट। ये कभी कभी रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या, एक बार, 2 बार, 3 बार आपके अपलाइन आकर के आपके प्रोस्पेक्ट को हो सकता है कि इनवाइट कर भी दें, लेकिन क्या ये रेगुलर प्रोसेस है? नहीं है। क्या ये हर वक्त चलेगा? नहीं चलेगा। क्या लॉन्ग टर्म में चल सकता है? क्या नहीं चल सकता। यानी कि इन्विटेशन इज द ओनली एक तरीके से आप कह लो कि एक प्रोसेस है जहां पे हर एक डिस्ट्रीब्यूटर की मास्टरी होनी जरूरी है। आज उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसमें क्या ट्रिक्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, उसके बारे में आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। तो आपसे सबसे उम्मीद है कि इस प्रेजेंटेशन को आप लोग अपनी टीम तक जरूर पहुंचाइएगा, और बेटर होता कि उसको आप लोग इन्वाइट कर लेते, राइट। खैर कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे हम लोग आपको एक प्रेजेंटेशन के तहत मैं कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखना
और इंटरेस्टिंग है, मजे करोगे, मतलब आने वाला 45 मिनट है जो आपको यहाँ पे आप एंजॉय करोगे, और आपके डेली रूटीन में जो चीजें होती हैं वही आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, राइट। जस्ट एक प्रेजेंटेशन है जो बहुत ही पहले, यानी कि लगभग 1 साल पहले ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाया था, जिसके ऊपर मेरे वीडियो भी है और मेरे चैनल पे वो पड़ा हुआ है। इनविटेशन के ऊपर जो है, कैसे आप इनवाइट करना चाहिए, सारी चीजें हैं। तो आई होप ये प्रेजेंटेशन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। कोई एक बंदा मुझे यस कर दे। पीपीटी शेयर हो गया है, दिख रहा है आप लोग को? यस सर, विजिबल है। राइट। इनविटेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, और इनविटेशन के ऊपर बात करने में 2-3 चीजें हैं। देखिए, आप पहला स्लाइड इसके अंदर जो आता है ना, ये चीज समझना होगा, इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। स्किल, आर्ट और साइंस। इनविटेशन क्या है? क्या ये स्किल है? क्या ये आर्ट है? इनवाइट करना, इनविटेशन इज एन आर्ट या फिर साइंस है ये? इसको अगर डिफरेंशिएट करें, अगर ये सवाल अगर आपने खुद से पूछोगे तो आपको थोड़ा सा रुक करके जवाब मिल जाएगा। ये स्किल भी है, एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है इनविटेशन के ऊपर, राइट। कई बार हम लोग किसी को इनवाइट करने जाते हैं, किसी के ऑफिस में चले गए, बाई चांस फिजिकल मीटिंग, तो हालांकि किसी के ऑफिस जा करके किसी को इन्विटेशन देना इतना चैलेंजिंग, हम लोग नॉर्मली कॉल पे ही इनवाइट करते हैं, फोन करके इनवाइट करते हैं, मैसेजेस के थ्रू इनवाइट करते हैं, राइट। जा करके इन्विटेशन देना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग सबके लिए हो जाता है। फिर भी अगर कोई चला जाता है और आप किसी के केबिन में एंटर करते हो और वहां पे आपने देखा कि उस व्यक्ति का जो मूड है बहुत खराब है, वो फोन पे किसी से बहुत लड़ रहा है, बहुत झगड़ रहा है, क्या आप उसको उस वक्त इनवाइट करोगे? नहीं करोगे। इसके पीछे साइंस है, उस बंदे का मूड खराब है, सिंपल सी गणित, ठीक है ना। यहाँ पे आपको स्किल काम नहीं आएगा, आपका कोई आर्ट काम नहीं आएगा, ठीक है। इट्स अ साइंस कि उसका मूड खराब है। मूड खराब होने का मतलब है कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो, अभी मैं कुछ अच्छी चीजें बोलूंगा उसको बुरा लग जाएगा, ठीक है ना। तो हमने उस चीज को अवॉइड करते हैं। सेल्स के अंदर एक बहुत एक हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज कर, टर्मिनोलॉजी तो नहीं कहेंगे, एक देसी भाषा में कहते हैं कि शक्ल देख के टीका लगाओ, समझ रहे हो? चेहरा देख करके टीका लगाओ। मैं कहने का मतलब ये होता है कि कभी भी आप सेल्स मार्केटिंग में कभी किसी क्लाइंट से आप मिलने जाओगे, राइट, तो वहां पे कई बार किसी क्लाइंट के पास जाते हो, कोई प्रपोजल लेके जाते हो, मिलने के लिए जाते हो, कुछ इवेंट्स कराना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, और आपको लगा कि यार आज आज समय लगता है कि यार ठीक नहीं है, उसकी ऑलरेडी मीटिंग चल रही है, बहुत पजल्ड है, 2 घंटा आपको वेट करवा दिया, आपको लग रहा है कि अभी मैं जाके इसको पिच करूंगा तो बात हो सकती है गड़बड़ हो जाए, है ना। तो हो सकता है कि उस बीच में हम लोग चेक कर लेते हैं, राइट। और कभी मूड बहुत अच्छा होता है तो कई बार हमने ऐसा भी किया है कि 5 लाख का प्रपोजल लेके गए, हमारे आदमी आज बहुत खुश है, 5 को 8 कर दिया हमने, वो 8 भी अप्रूवल हो गया, ठीक है। सेल्स में बहुत सारे टेक्निक्स है, सेल्स में बहुत कुछ चलता है। कई बार प्लान की हुई चीजें नहीं हो जाती, कई पे अनप्लान चीजें मिल जाती है, राइट। तो ये सब सेल्स का पार्ट है। बट आज हम लोग इन्विटेशन के ऊपर बात करेंगे। इन्विटेशन की जब हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त, तो आप एक चीज समझना, इट्स अ मिक्सचर ऑफ स्किल, आर्ट एंड साइंस, ठीक है। इन्विटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। शायद इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इससे इंपॉर्टेंट शायद ही कुछ नहीं, क्योंकि सारा खेल यहाँ पे छुपा हुआ है। इन्विटेशन में आज मान लीजिए, आज एक लिस्ट शेयर किए थे, 7-8 जगह पे मीटिंग हो रही है, राइट। यानी कि 14 तारीख को 2 मीटिंग, 16 तारीख को 2 मीटिंग, उसके बाद पर्सनल मीटिंग तो अलग अलग टीम की हो ही रही है, ठीक है ना। पर्सनल जो अपनी टीम वाइज जो लोग अपना मीटिंग करना चाह रहे हैं वो तो अलग है। कंपनी के द्वारा, यानी कि एटमी जो ऑर्गेनाइज कर रहा है इवेंट, 14 तारीख को 2 मीटिंग, 16 तारीख को आपके 2 मीटिंग हो रहे हैं, फिर 24 तारीख को मीटिंग हो रहा है, 27 तारीख को मीटिंग है, सेमिनार है, राइट। देन फिर 30 तारीख को सेमिनार। आप समझना किस लेवल पे कंपनी किस मोड पे जा चुकी है, राइट। तो यहाँ पे इतने सारे मीटिंग्स हो रहे हैं, अब कैसे कहाँ किसको, अब सारा खेल इन्विटेशन पे आके गाड़ी फंस जा रही लोगों की। यार वहां पे हमारे तो यूपी में हमारे जानकार तो हैं, कैसे इन्वाइट करें उसको उस मीटिंग, ठीक है। दिल्ली के अंदर 30 तारीख को सेमिनार, हमारे पास 25 दिन है, कैसे लोगों को इन्वाइट किया जाए वहां पे, कैसे इन्वाइट करें, क्वेश्चन है, ठीक है ना। गुवाहाटी में मीटिंग हो रहा है, मेरे 4-5 प्रोस्पेक्ट है, मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैं कैसे उनको इन्वाइट करूं कि वो जाके सेमिनार अटेंड कर लें। बात घूम फिर के इन्विटेशन पे आ जाती है। इसलिए ये पार्ट को समझना, इस पार्ट को जानना और इस पे मास्टरी करना, ठीक है ना। जानना, समझना और इसके ऊपर मास्टरी करना आपको पड़ेगा ही, कोई उपाय नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको ये काम में मास्टरी करनी है, राइट। तो पहला जो प्रेजेंटेशन स्लाइड था उसमें स्किल की बात कर रहे थे, आर्ट की बात कर रहे थे, साइंस की बात कर रहे थे। जैसे एक एग्जांपल में आपको और देता हूं। आप लोग एक चीज समझना, जो हाउसवाइफ्स होती हैं, घर पे खाना बनाने का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीनों टाइम ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, करेक्ट। खाना बनाना इज जस्ट लाइक इन्विटेशन,
कहने का मतलब अब इन्विटेशन कहना है उसको बिल्कुल डायरेक्टली इनडायरेक्ट में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि वहां पे भी स्किल की रिक्वायरमेंट है, वहां पे भी आर्ट की रिक्वायरमेंट है, और वहां पे भी साइंस की रिक्वायरमेंट है। तीनों का मिक्सर होकर खाना, अगर टेस्टी खाना बनाना है तो तीन चीज की जरूरत होती है। खाना बनाने के लिए भी स्किल की रिक्वायरमेंट है, आर्ट की रिक्वायरमेंट और साइंस का। कैसे वो समझना। स्किल का मतलब ये होता है किस समय कौन सा फ्लेवर डाला जाए, मसाला डाला जाए, किसको किस, मतलब आर्ट का हो गया प्रेजेंटेशन, आर्ट समझ लो प्रेजेंटेशन, खाना बना देना और उसको गलत तरीके से उसको अगर परोस दोगे तो खाने का कोई मतलब नहीं। खाना अगर बेकार भी बना है लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर है, फिर भी लोग खाते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। और खाना बहुत बेहतरीन बना दिया लेकिन प्रेजेंटेशन कुछ नहीं किया, ऐसे ही ला करके दे दिया सामने, लोग खाओ, जो प्लेट में आना चाहिए था वो कटोरे में आ गया भाई साहब, है ना, तो प्रेजेंटेशन गलत हो गया। ठीक है ना, वो आर्ट होता है। हर चीज को प्रेजेंटेशन इज जस्ट लाइक आर्ट। अब प्रेजेंटेशन के अंदर ब्यूटिफिकेशन आर्ट दिखाना पड़ता है आदमी को। बातें जो है मैक्सिमम चीज स्लाइड से निकल के आ जाए, बताने की कम जरूरत, लोगों को देख के समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बातें करने वाला हूँ, राइट, दैट इज कॉल्ड आर्ट, है ना। तो खाना बनाने की जब हम लोग बात करते हैं वहां पे आर्ट की जरूरत है। आर्ट इज इक्वल टू प्रेजेंटेशन, खाना का प्रेजेंटेशन। स्किल का मतलब होता है कि कितना चलाना है, कैसे चलाना है, लेफ्ट में कितना, राइट में कितना, कब इस हाथ से कब इस हाथ से घुमाना है, ठीक है, कब उसको लेके हिलाना है। आप देखे हो रेस्टोरेंट्स के अंदर, राइट, वो सारी चीजें स्किल के अंदर आता है। और साइंस के अंदर ये आता है कि सॉल्ट कितना डाला जाए, कब डाला जाए, मसाला एक साथ सारे मसाले यूज करने हैं या अलग अलग मसाले को अलग अलग 5-5 मिनट के ब्रेक में करना है। ठीक है, आप रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाओगे ना तो हर एक मसाले को सर्टेन टाइम पे डाला जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर पनीर बटर मसाला बनाना है तो बटर का कॉम्बिनेशन है तो उसके सबसे स्टार्टिंग में क्या डालेंगे वो अलग, देन अगेन दूसरा मसाला 5 मिनट के बाद, फिर तीसरा मसाला 5 मिनट के बाद, ऐसे ऐसे करके वो लोग प्रेजेंटेशन करते हैं, राइट। तो साइंस है इसके पीछे। हर मसाले की एक अपनी ब्यूटिफिकेशन होती है, हर मसाले की एक अपनी क्वालिटी होती है, हर मसाले का एक अपना एक फ्लेवर होता है, राइट। इस चीज को आप समझना। तो साइंस भी है, आर्ट भी है, स्किल भी है। उसी तरीके से इन्विटेशन के अंदर भी स्किल भी जरूरत पड़ेगी, आर्ट की भी जरूरत पड़ेगी और साइंस की भी जरूरत पड़ेगी, राइट। राइट, अब हम लोग आते हैं ट्रिक्स के ऊपर। ट्रिक्स ऑफ इन्विटेशन, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे। देखिए, अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन एक चीज आप समझना कि यहाँ पे अगर इन्विटेशन में आपको मास्टरी करनी है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं कुछ डेमो करके भी आपको बताऊंगा और आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको मजा आएगा। जैसे हम लोग अभी मैसेजेस, अभी नॉर्मली लोग व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, इन्विटेशन की जब बात आती है, आज जैसे मान लीजिए आज का सेशन था इन्विटेशन के ऊपर, ठीक है ना, इन्विटेशन के ऊपर आज एक सेशन था, रात को 9 बजे जूम पे सेशन होगा, 3 बजे के आसपास लिंक शेयर कर दिया गया। आप में से, ये सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली उसी मैसेज को फॉरवर्ड कर दिए, डायरेक्टली बिना देखे समझे टाइमिंग। बहुत लोगों की आदत होती है आया खट से फॉरवर्ड, वो खुद भी नहीं पढ़े फॉरवर्ड, ठीक है ना। और कितने लोग ऐसे हैं कि उस इन्विटेशन का इंपॉर्टेंस को समझे, 2-4 लाइन अपना उसमें ऐड ऑन किया, देन उसको आपने फॉरवर्ड किया। ऐसे कितने लोग? तो बहुत नॉमिनल आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी मैसेज, एक प्रैक्टिस हमेशा अपने अपने जहन में रखिएगा। आज के बाद जो है ना, कुछ चीजें आपको सीखना पड़ेगा। कभी भी कोई भी मैसेज अगर ग्रुप में किसी के थ्रू आता है, वो चाहे कोई भी सर्कुलेट करे, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आ, कंपनी का कोई मैसेज आ गया, अब आपको उसको ग्रुप में सर्कुलेट करना है, तो कोशिश ये करना है कि उसमें 4 लाइन एड ऑन करके दिया जाए, ठीक है ना। 4 लाइन एड ऑन, कुछ आपको अपना कंटेंट अगर शेयर करना है, कट कॉपी पेस्ट से बचे। ये गलत चीज नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस में जब आ जाएगा ना, तो प्रैक्टिस से बाहर निकलना फिर एक अलग चैलेंज हो जाता है। आदत पड़ जाती है लोगों को, उठाया कॉपी पेस्ट, उठाया कॉपी पेस्ट, ठीक है ना, उठाया वहां से पेस्ट कर दिया, फॉरवर्ड करने से कुछ नहीं होता। आपको हर एक मैसेज के अंदर आपको अपना एक लैंग्वेज होना चाहिए आपका, वो चाहे किसी भी लैंग्वेज में लिखो, आप गुजराती में लिखो, आप बंगाली में लिखो, आप हिंदी में लिखो, कैसे भी लिख सकते हो, राइट। आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, वो है मैसेजेस, थ्रू टेक्स्ट मैसेज, थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस, है ना। व्हाट्सएप मैसेज और टेक्स्ट मैसेज से भी इन्विटेशन होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। डिपेंड करता है कि आप कंटेंट क्या लिख रहे हो, क्या पूरी कहानी लिख दे रहे हो क्या उसके अंदर, कोई नहीं पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा साहब। अगर आपने इन्विटेशन करना है किसी मीटिंग्स में, किसी को इनवाइट करना, और आपने उसकी इंपॉर्टेंस बता करके 8 लाइन 10 लाइन का अगर लिख दिया, तो आप एक चीज मान के चलना कि उसको कोई पढ़ने वाला तो नहीं देखेगा, अरे यार इतना ठीक है, रुक के पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। वो आराम से पढ़ने के चक्कर में उसके दिमाग से निकल जाता है, वो देखता नहीं है, फिर बोलता है यार पता नहीं कौन सी मीटिंग थी, क्या था, वो तो चलो कल था, फिर वो दिमाग ही नहीं लगाए। समझ रहे हैं? ह्यूमन माइंड्स को समझने की कोशिश कीजिए। आपके साथ जो होता है वही चीज बाकी लोगों के साथ भी होता है। अगर आपको कोई व्यक्ति पूरा एक पैराग्राफ लिख करके भेज दे, उसने भेजा इन्विटेशन के हिसाब से, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी मैसेज लिख दिया, तो क्या आप उसको पढ़ोगे?
और ऐसे मैसेजेस कितने सारे आते हैं दिन भर में। बैंक्स के आप देखो तो बैंक के ऑफर्स आते हैं कम से कम 6 से 7 मैसेज, तो एक एक बैंक के ऑफर आते हैं। एसबीआई का अलग मैसेज आ रहा है, आईसीआईसीआई का अलग आ रहा है, एचडीएफसी वाले खटाखट मैसेजेस भेज रहे हैं, ये ऑफर वो ऑफर, उसी बीच में कितने सारे कॉल आ जाते हैं। एवरी डे बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां से एवरी डे कॉल आते हैं, सब ये ले लो, सब ये है, सब ये ले लो, कर लो, ये ले लो, प्लान ले लो, फलना ले लो, राइट। इतने सारे कॉल, इतने सारे मैसेजेस हैं, उसके बीच में आपका भी एक मैसेज जाता है, और उस मैसेज में ऐसा आप क्या लिखो कि वो व्यक्ति जिसके पास सुबह से लेकर शाम तक मैसेजेस और कॉल्स के भरमार होते हैं, वो आप टाइम निकाल करके वह मैसेज को पढ़े। ऐसा क्या कंटेंट है। अब ये बात घूम फिर के आ जाती है कंटेंट के ऊपर कि आपको क्या कंटेंट देना है, ठीक है ना। हम लोग जब कोई इवेंट करते हैं, इवेंट इन द सेंस मैं अपने कॉर्पोरेट की बात बता रहा हूँ, इवेंट जब हमारा कुछ फैशन शो करा लिया, मान लो अभी अभी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के साथ हमारी एक्टिविटी हो रही, राइट, एक्सप्लोर राजस्थान के नाम से, ठीक है ना। एक्सप्लोर राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे आइडेंटिफाई एरिया है जहां पे आज तक किसी को पता ही नहीं, ठीक है ना, आज तक किसी को नहीं मालूम। सांबर लेक के बारे में किसी ने सुना क्या? राजस्थान में सांबर लेक के नाम से एक लेक है, बहुत ही खूबसूरत, उसके बारे में कोई नहीं जानता। तो वहां पे हम लोगों ने क्या किया, हमारी टीम ने क्या किया, वहां पे कुछ मैंने ऐसे स्पेसिफिक लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जहां पे लोग नहीं जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं। अब उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये एक एक्टिविटी चल रही है जहां पे हम लोग यही कहा, सुबह से लेकर शाम तक यही कॉल होता है कि इनवाइट करो लोगों को, मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करो वहां। तो इन्विटेशन का प्रोसेस वहां पे भी है। और एवरी डे मैं बताऊं, इस बिजनेस की मैं बात करूं या अपने जॉब की बात करूं, इन्विटेशन हमारे लाइफ का पार्ट है साहब। सुबह से शाम तक कुछ चीजों में हमें इनवाइट किया जाता है, और सुबह से शाम तक कुछ चीजों के लिए हम लोग इनवाइट करते रहते हैं। फिर जब इस बिजनेस में आते हैं तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है इन्विटेशन। इसलिए मैं कह रहा हूँ और इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ स्टार्टिंग में, इन्विटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। इसलिए इसमें अगर आपने मास्टरी कर ली तो आपने खेल आप बड़ा खेलोगे। अगर इसमें कमजोर रह गए या इसमें कहीं वीकनेस रह गई या आप घबरा जाते हो, कुछ हो जाता है, नहीं बोल पाते हैं अगर सामने वाले बंदे को, तो आप हेजिटेट करोगे बात करने में, राइट। अगर ये सब प्रॉब्लम रहा तो इस इंडस्ट्री में टिकना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, ठीक है ना। पॉइंट टू पॉइंट मैं डिस्क्राइब करता हूं, फिर लास्ट में और भी कंटेंट मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है ना। यूज व्हाट्सएप ऐप और टेक्स्ट मैसेजेस वाया मोबाइल फोन। अपने मोबाइल फोन से कोशिश ये करना है कि आप कुछ ऐसा मैसेज ड्राफ्ट करें, ठीक है, ऐसा मैसेज, और बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए। बहुत लेंदी मैसेज डालोगे तो फिर लोग नहीं पढ़ते, ठीक है ना। आपको मैसेज इनवाइट करना, आपने उठा करके लिंक उठा करके ग्रुप में शेयर कर दिया, किसी फ्रेंड्स को आपने, आपकी बात पिछले 1 महीने से नहीं हुई, आपने वो लिंक उठाया, राकेश इज इनवाइटिंग फलना, इन्वेंट सक्सेस सिस्टम इज इनवाइटिंग फॉर दिस इनविटेशन प्रोग्राम, और ये करके आपने कुछ भी इनवाइट किया, किसी को भी पिछले 1 महीने से डेढ़ महीने से डिस्ट्रीब्यूटर से आपकी बात नहीं हुई है, उसको आप इन्वाइट कर रहे हैं। वो देखेगा लिंक क्या चीज का है, पता नहीं क्या इन्विटेशन, क्या बातें होने, वो आएगा ही। इनवाइट भेजने से पहले क्या हम लोग उसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं, 2 लाइन लिख सकते हैं क्या? ये जो मैसेज मैंने सर्कुलेट किया उसको सर आप अपनी टीम में सर्कुलेट करो, उससे पहले 2 लाइन 3 लाइन अगर आप इनविटेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में लिख करके अपने ग्रुप में सर्कुलेट कर देते कि इंपॉर्टेंस ऑफ इनविटेशन। अगर ये जानना है, अगर ये सीखना है तो आज की मीटिंग मिस ना, 2-3 बार अगर आप इसको एक चीज करते तो बोलते हैं लिंक कौन सी, लिंक भेजा ही नहीं आपने, वो व्यक्ति आपको मैसेज करता यार आप कौन सी मीटिंग की बात कर रहे हो, लिंक तो आपने भेजा ही नहीं, किसको कनेक्ट करना है, बोले अभी आ जाएगा 5 मिनट के अंदर। अब उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई ना कि कुछ तो इंपॉर्टेंट होने वाला है, अब वो लिंक मांग रहा है आपसे। तब आप अगर भेजोगे तो 100% वो व्यक्ति आकर के उसको आपके मीटिंग को, आपका डिस्ट्रीब्यूटर, इनफैक्ट मैं आपको देखो यहाँ पे नए लोगों को तो ये इन्विटेशन की जो बात हो रही है ना, यहाँ पे ये जो ट्रेनिंग का पार्ट हो गया है, यहाँ पे आपको नए लोगों की बात नहीं कर रहा, जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे ऑलरेडी है उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि उनको इन्विटेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी को भी इनविटेशन अपने टीम में भी आज मैक्सिमाइज, देखिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज आज हर एक टीम के अंदर ये आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट तो बहुत लंबी है, टीम बहुत बड़ी है साहब, लोग मीटिंग में नहीं आते। मीटिंग में इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको बिजनेस नहीं करना है, वो इंपॉर्टेंस समझ ही नहीं पा रहे। दूसरा, आप जब बुलाते हो ना वो बहुत क्लियर नहीं होता है। अब वो इन्विटेशन का एक फेज, एक पार्ट होता है, ऐसा डायरेक्टली आप किसी को मत बुलाओ, ठीक है ना। डायरेक्टली बुलाओगे बोलेगा यार पता नहीं कौन सी मीटिंग। थोड़ा सा माहौल, हर जगह हर चीज के पीछे माहौल, थोड़ा सा माहौल बनाइए, हर मीटिंग को बड़ा बनाइए, बड़ा बनाओगे लोग आएंगे। छोटा हल्के हल्के में बोल दोगे अरे आज का टॉपिक इन्विटेशन है, आ जाना भाई, अपने टीम में भी भेज दो, वो बोलेगा ठीक है देखते हैं, नहीं आएंगे।
ठीक है ना। लेकिन अगर आपने इसको उस तरीके से मार्केट किया होता कि इनविटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लंबे समय के बाद हो रहा है, बॉस ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपकी टीम सीख गई है, आप सीख गए, मैं सीख गया, तो 100% बिजनेस में बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। उसके ऊपर बहुत जेन्युइन टॉपिक आज कंटेंट शेयर किया जाएगा, तो आज की मीटिंग मिस नहीं करना। अगर अपने हिसाब से आप मार्केटिंग करते हो तो 100% वहां पे रिजल्ट आपको अच्छा मिलता, राइट। आगे बढ़ते हैं। डोंट टॉक अननेसेसरी स्टफ व्हाइल इनवाइटिंग टू द प्रोस्पेक्ट। कभी भी किसी प्रोस्पेक्ट को, अब बात आती है इनवाइटिंग की, ये बहुत कॉमन है। आप जब इसको, ऐसा नहीं है कि मेरा बनाया हुआ प्रेजेंटेशन मैं क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। ये एक समय था, एक समय मतलब उस बीच में मुझे लगता है कि इनविटेशन के ऊपर मुझे वीडियो बनाने थे, मैंने जस्ट यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और कंटेंट मुझे शेयर करना था, उस वक्त मैंने प्रेजेंटेशन बनाया था, राइट। तो ये जो है ना, जब भी आपको किसी को इनवाइट करना है इस मीटिंग के लिए, बात होती है इनविटेशन, मतलब आज तो चलो इनविटेशन का अमन सेशन चल रहा है। नॉर्मली मीटिंग में किसी को इनवाइट करना हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन के लिए भी सेम प्रोसेस, ऑफलाइन के लिए भी सेम प्रोसेस, तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, आप समझना उस चीज, ठीक है ना। हमें जो है किसी को भी जब इन्वाइट करते हैं तो एक चीज दिमाग में सेट कीजिए, सबसे पहले 1 मिनट से घड़ी देख करके इन्विटेशन डालना स्टार्ट कीजिए। 1 मिनट से अगर आप ऊपर जा रहे हो, यानी कि आप समझना कि आप अपना इन्विटेशन खराब कर रहे हो। अगर 1 मिनट के अंदर आपने इन्विटेशन कर दिया, इनवाइट कर दिया, जब आप कॉल कर रहे हो, किसी को फोन कर रहे हो, अभी बात हम लोग मैसेजेस के कर रहे थे, अब बात कर रहे हैं कि अब हम किसी को फोन करके, कॉल करके अगर किसी को इनवाइट कर रहे हैं, या हम फिजिकली कोई टकरा गया, किसी घर चले गए इनवाइट करने के लिए, तो 1 मिनट से ज्यादा आपको लेना नहीं है। 1 मिनट से ऊपर अगर आपने ले लिया तो आप समझ लेना कि सामने वाला व्यक्ति ने आपका एक वो, आपने स्वेटर देखा है घर में, मतलब कई सारे घर में देखना, मतलब मम्मी, मेरी मम्मी जैसे एक स्वेटर बनाया करती थी, राइट। अब नहीं बनाती, एक समय पर बनाती थी। तो स्वेटर का कभी कोई धागा निकल जाए ना एक अलग से, तो आदमी उसको खींचोगे ना तो उधेड़ता निकल जाता है, समझ रहे हो आप उसको, ऐसे ऐसे खींचते जाओगे, खींचता चला जाएगा, स्वेटर इतना बड़ा है, छोटा होते 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 यहाँ तक पहुंच जाए, ठीक है ना। तो अगर आपने 1 मिनट से ऊपर लगा दिया, इसका मतलब ये समझ लेना कि आपने अपने स्वेटर का एक धागा सामने वाले को पकड़ा दिया, वो उधेड़ के छोड़ देगा, ठीक है। क्या है मीटिंग, काय की मीटिंग, कौन सी मीटिंग, पैसे लगेंगे, टिकट चार्ज कर रहे हो क्या, ये कहीं वो तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है, वो वाला कहानी स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप उसके जवाब देते 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 हंसते चले जाओगे और अल्टीमेटली आपका केस वहां पे खत्म हो जाएगा, वो बंदा नहीं आने वाला आपकी मीटिंग, ठीक है। हमें, मैं सबको रिलेट करूंगा, जितने भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए, सबको एक दूसरे से मैं आपको रिलेट करता चला जाऊंगा, राइट। यहाँ पे पहला पॉइंट जो मैंने आपसे क्लियर किया कि आपको बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी। अब इसको स्टाइल समझो, कैसे आप बात करनी है, कैसे आपको बोलना है, हर लोगों का तरीका अलग अलग होता है। आप जब भी किसी से जब मीटिंग के लिए इन्वाइट करते हैं तो आपका जो स्क्रिप्ट है वो रेडी होना चाहिए। स्क्रिप्ट डिपेंड करता है, अब स्क्रिप्ट पे रट के तो नहीं जाओगे। एक मान लो कि देखो, आप कभी किसी को इनवाइट करने जाते हो, या तो आपसे एज में छोटा है, या तो आपसे एज में बड़ा है, या तो बहुत सीनियर है। कभी कॉर्पोरेट में जाओगे तो वो तो जूनियर लेवल का बंदा आपसे है, कभी आपको लगेगा कि आपसे सीनियर है प्रोफेशन में, ठीक है। तो हर जगह पे जो है आपका जो कंटेंट होगा वो अलग होगा। स्क्रिप्ट जो है बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा, तो उसकी मास्टरी ऑटोमेटिक हो जाएगी, उसके लिए कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। डेली बेसिस पे जब आप लोगों से बात करना स्टार्ट करो तो आपको समझ में आ जाएगा किस व्यक्ति से मुझे किस तरीके से बात करनी है, ये आपको क्लियर हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें इनविटेशन के दौरान एक चीज हमेशा दिमाग में रहिएगा कि आपको पिक्चर का नाम नहीं बताना है, मूवी कौन सी है वो नहीं बताना है साहब, आपको बस मूवी की एक झलक दिखला देनी है, दैट्स इट। सर ये मूवी रिलीज हो रहा है, 11:20 पे स्टार्ट हो जाएगा, 5 मिनट अगर लेट हो गए तो कहानी समझ में नहीं आएगा। मूवी कभी कभी हम लोग मूवी देखने जाते हैं, पिक्चर टिकट हमने ऑनलाइन बुक कर लिया, राइट। उसके बाद कितनी भागते हो जाते हैं, जब मान लो कि 2 बजे से शो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना, 2:05 हो गया, रफ्तार कितनी बढ़ जाती है, अरे यार छूट जाए, फिर कहानी समझ में नहीं आएगी। उसी तरीके से जब आप इन्विटेशन करते हो, पिक्चर का नाम नहीं बताना है, कौन एक्टर है, कौन हीरोइन है, कौन हीरो है, विलेन कौन है, ठीक है ना, कहाँ पे शूटिंग हुई, कौन सी जगह पे मूवी बना, कितना खर्चा आया, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। आपने एक छोटी सी क्लिपिंग दिखा दी, सर ये जबरदस्त मूवी है, वो ठीक है ना, टाइम देख लो, इस टाइम पे पहुंचना, अगर 5 मिनट 7 मिनट भी लेट हो गए तो पूरी पिक्चर निकल जाएगी, आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला।
तो सेम स्क्रिप्ट आपको यहाँ पे देना, हमें अपने टाइमिंग पे फोकस करना है। आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब भी किसी को आप इनवाइट करो ना, तो आप जाकर के मान लो कि किसी एक इंडिविजुअल को आप इनवाइट कर रहे हो, फोन पे आप बात करो, आपने बात किया, ठीक है, बात कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए एक अलग टेक्निक है, वो आने वाले स्लाइड में आपको दिखेगा, राइट। लेकिन अल्टीमेट जब लास्ट में जब आप उससे बोलोगे ना, तो हमेशा एम्फेसाइज कीजिए, उसको सवाल पूछने देना ही नहीं। आपको बस ये बोलना है मीटिंग का टाइमिंग ये है बॉस, मीटिंग का टाइमिंग ये, एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, मिस नहीं करना है, बिल्कुल समय पे आओगे तभी समझ में आएगा। अगर आपने लेट कर दिया तो बहुत बड़ा आपको लॉस होने वाला, आपको कोई मतलब नहीं है फिर आने का। आना है तो बिल्कुल टाइम पे आना पड़ेगा, और आप अभी कंफर्म करो कि आओगे या नहीं आओगे, ठीक है। बोलेगा यार देखते हैं करते, हमने देखते करते का समय नहीं है सर, ऐसा है कि अभी मैं तो, मुझे 2-3 काम और भी है, मैं आपको देखता हूँ, मैं आपको क्या कर आपके आपका जगह हो पाएगा नहीं हो पाएगा, देखता हूँ, मैं आपको कॉल बैक करूंगा, ठीक है। आप थोड़ा सा अर्जेंसी दिखाओ, इतना फ्री मत दिखाओ कि मैं बहुत फ्री बैठा हूँ और मैं इतना फ्री बैठा हूँ कि मतलब आपसे मैं घंटों घंटों बात कर लूंगा, ऐसा नहीं है। बोला ठीक है यार, मेरे पास अभी बहुत सारे काम है, बहुत लोगों को इनवाइट करना है, आप सोच लो, मैं 5 मिनट के बाद मुझे मैसेज कर देना, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, करेक्ट। इस तरीके से बोल के आप फोन को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। कभी कभी फोन को डिस्कनेक्ट करोगे तो सामने वाला आदमी क्या उस उलझन में रह जाता है, पता नहीं क्या होने वाला है, ये आदमी किसको किसको इनवाइट कर रहा है, ठीक है ना। तो उसके दिमाग में क्या एक क्यूरियोसिटी जाग जाती है, जो कि नेक्स्ट स्टेप है। आप समझना, थर्ड पॉइंट आप यहाँ पर देखो, बी एक्साइटेड, मेंटेन क्यूरियोसिटी, टॉक विद द कन्विक्शन, ठीक है। ये तीनों पॉइंट बहुत है। अब एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, एक्साइटेड का मतलब वहां पे आपको वो विवेक बिंद्रा नहीं बन जाना है, पूरा हाथ पैर ऐसा करके कर रहे हैं, वो नहीं करना है अपने आप को, राइट। हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्साइटमेंट का मतलब होता है वॉइस ऑफ टोन, बहुत तेज चिल्ला के भी बोलोगे तो भी गलत है, बहुत बॉडी मूवमेंट करोगे तो भी गलत है। अपना स्टाइल होता है, लेकिन आपकी एनर्जी दिखनी चाहिए, वो स्टाइल अपना अपना सबका सबकी एक अपना एक बात करने का तरीका होता है, उस स्टाइल को केवल फॉलो कीजिए। एक्साइटमेंट का मतलब उछलना कूदना नहीं होता, एक्साइटमेंट का मतलब जोर से बोलना नहीं होता, एक्साइटमेंट का मतलब बॉडी मूवमेंट करना वो नहीं होता, ठीक है ना, ठीक है। तो आपको एक्साइटमेंट आपके वॉइस में दिखनी चाहिए, हमें उनको क्यूरियोसिटी जगा के छोड़ देनी है, और जो भी आप बोले कॉन्फिडेंस से बोले। कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, हमारे मैक्सिमम लोग, प्रॉब्लम क्या होती है मैं आप लोगों को समझाता हूं। हम लोग जानते हैं हमारे में कई लोग ऐसे हैं, मैं किसी को इंडिविजुअल नहीं बोलूंगा, लेकिन आप समझना, एक होता है मतलब बेगिंग वाला एटीट्यूड हो जाता है, अरे सर मतलब देखो ना यार, टाइम निकालो, पिछली बार भी बुलाया था तुम तो आए नहीं, इस बार प्लीज टाइम निकाल के आओ ना यार, एक बार आओ ना, देखो ना, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक बार आओ तो सही, ठीक है। तो वो बेगिंग एटीट्यूड में चलाता है, मांग रहे हो। हम लोग इस बिजनेस में आप एक चीज समझना, हम लोग क्या मतलब कुछ मांगने आए हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराना, वो मेरा मन करेगा तो मैं कराऊंगा, नहीं मन करेगा मत नहीं कराऊंगा, भले ही किसी कंपनी में किसी भी लेवल पे काम कर रहा हूं, मैं देखूंगा बंदा मेरे लायक है कि नहीं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को बिजनेस में लाना केवल मोटिव नहीं है, उनके साथ काम करना, उसको आगे बढ़ाने के पीछे मेहनत होती है साहब। गलत आदमी को बिजनेस में ले आओगे, ठीक है, अब लगे रहो उसके पीछे, मेहनत करते रहो, 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल आपको मालूम चला आपको ही बर्बाद कर दिया उसने, ठीक है ना। तो हमें उस तरीके के लोग नहीं चाहिए। तो मैं देखूंगा कि आप क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि मेरा पर्पस उससे सॉल्व नहीं होता कि आप आईडी आपकी यहाँ पे लगे, आप समझना इस बात, राइट। मेरा पर्पस है कि इस बिजनेस को समझ के आओ, तो समझ के आने के बाद हमारे साथ मिलकर के काम करो, ठीक है। तो हमें कभी भी किसी को जब इनविटेशन करना होता है ना, तो इनविटेशन करने के ड्यूरेशन में आपका एक्साइटमेंट लेवल बरकरार होना चाहिए। क्यूरियोसिटी, सारे किताब नहीं खोल देनी है इनविटेशन के दौरान, आपको केवल मीटिंग में इनवाइट करना है, दैट्स इट। वो पूछेगा कौन सी कंपनी, सर मीटिंग में आओ, वही ऑन द टेबल वाला ऑन द टेबल बात करेंगे सर, इतना टाइम नहीं अभी बताने के लिए, तो बहुत कुछ है, ठीक है। मैं बताने बैठूंगा तो 1.5 घंटे ही लग जाएंगे, मतलब नहीं। आप बेटर है कि आप टाइम निकाल के वहां पे पहुंचो, और टाइम पे आना बिल्कुल। और वेन्यू ये है टाइम पे आना, यहाँ से निकलोगे आपको 20 मिनट लगेगा, 25 मिनट लगेगा, घर से आधा घंटा पहले निकलना, 1 घंटा पहले, तभी आप टाइम पे पहुंच पाओगे। तो मतलब आप एम्फेसाइज किस चीज पे कर रहे हो, कि समय पे निकलना और समय पे पहुंचना। वेन्यू कौन सा है वो आप बता रहे हो, और समय पे पहुंचना, समय पे पहुंचना, 1 बार 2 बार 3 बार बोल करके फोन कर दो डिस्कनेक्ट, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप लोग को। एक्साइटेड रहना है, क्यूरियोसिटी बना के रखना है, यानी कि उसको हमने कुछ बताया ही नहीं भाई साहब क्या है और क्या होने वाला, राइट। टॉक विद द कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब होता है कि जो भी बोलो कॉन्फिडेंस में, राइट। और कॉन्फिडेंस आता है कहां से, कॉन्फिडेंस आता है कि जैसे मान लीजिए, एक तो होता है कि यार गिविंग एटीट्यूड का लेकर के हम लोग को आगे लाइफ में पढ़ना चाहिए, कि हम किसी को कुछ देने के लिए इस बिजनेस में आए। मैं इस बिजनेस में ज्वाइन किया हूं, अगर मैं किसी लोगों को आईडी लगाता हूं ना, ठीक है, तो मैंने उसको एक अपॉर्चुनिटी दी है, उससे कुछ लिया नहीं है। एक अपलाइन एक डाउनलाइन को कुछ उससे कुछ लेता नहीं है, उसको देता है, हमेशा देता आएगा, आगे भी देता रहेगा, आपको उसे लेगा कुछ भी नहीं।
राइट। तो हम लोग जब किसी को इस बिजनेस में लेकर के आते हैं, ठीक है ना, तो ये एटीट्यूड होना चाहिए, भाई अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको दे रहा हूँ, ये वाला एटीट्यूड में अगर आप जाओगे, बात करोगे, तो कन्विक्शन है। अगर आपको लगेगा कि भाई साहब आईडी लगा लो, ठीक है ना, तो आपको बेगिंग एटीट्यूड आ जाएगी, तो वो चेहरे पे झलक जाता है, सामने वाला आदमी लग जाएगा, अरे यार ये मेरे को ना जोड़ लेगा और आईडी वाईडी लगा देगा, कुछ करेगा, इसको अपने फायदे के लिए आया, ठीक है ना। अगर उस एटीट्यूड के सामने, दुनिया बहुत समझदार हो गई, लोग बहुत चीज समझते हैं, देख करके चेहरे देख करके लोग रीड कर लेते हैं कि भैया किस लिए आया है मेरे पास, करेक्ट। तो बहुत स्मार्टली हमें इस बिजनेस में अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा। मैं एक एक पॉइंट पे इतना इंफेसाइज केवल इसलिए कर रहा हूँ कि सारी चीजें आपके जहन में उतर जाए, राइट। अब एक आता है यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आजकल बहुत चल रहा है, किस डोंट किल, ठीक है। तो वो इनविटेशन कैसा होना चाहिए, वो क्रिस्प होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, राइट। वो सब सारी चीजें हैं, इसमें मैं बहुत टाइम नहीं लगाऊंगा। ये आपको मैं सोशल मीडिया में बहुत खुल के लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में कि इनविटेशन शुड बी क्रिस्प, क्लियर, क्रिस्टल, क्यूरियोसिटी उसके अंदर होना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करनी है, ठीक है ना, लेंदी नहीं करना है आपको, बहुत लंबा यानी 1 मिनट के अंदर इन्वाइट करके आपको आगे निकल जाना, राइट। ऑलवेज गिव टाइम चॉइस टू द प्रोस्पेक्ट। कभी भी आप किसी को इन्वाइट करते हैं, जब इनविटेशन पे आपको जब वहां से एक ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, तो उसको समय दीजिए, 2 समय दीजिए कम से कम, कि यार इतने बजे या कल इतने बजे बताओ कौन से टाइम में। देखो ये एक सेलिंग स्किल है। जब आप किसी को ना, एक ह्यूमन माइंड है, 2 ऑप्शन दोगे ना, 2 ऑप्शन दोगे, एक आदमी पकड़ ही लेता है। ये एक मतलब कई जगह पे मेंशन है, कई लोगों ने इसके बारे में बात की है, और काम एक्चुअली में करता है। 2 टाइम दोगे तो सामने वाला बंदा 1 टाइम पकड़ ले, ठीक है ना। हम लोग भी आज प्रपोजल, कभी कोई क्लाइंट के पास जाके कोई प्रपोजल डिस्कस करना होता है ना, तो 2 ब्रैकेट देते हैं, सर ये वाला ये कॉस्ट पड़ेगा, ये वाला ये कॉस्ट पड़ेगा, 2 कॉस्ट देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक पकड़ने, दोनों मना नहीं कर सकता। वो लगता है यार ये तो कुछ कम प्राइस है, ये 4 लाख का बता रहा है, ये बता रहा है 370 का, 370 वाला पकड़ लो यार, ठीक है। उसको शायद नहीं देना था 370, मेरे को 4 लाख नहीं देना था, एक बात बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसको लगा 3.7 वाला कम कर लो, उसमें नेगोशिएट कर लेगा आपसे, 3.5 में क्लोज कर देगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है वहां पे कि क्लाइंट आपका क्लोज करते हैं। उसी तरीके से जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को जब आप 2 टाइम देते हो ना, इवनिंग, मॉर्निंग, कल का, परसों का, एक इस वीक में ये मीटिंग है, तो या तो इस वीक में आ जाओ, या तो नेक्स्ट वीक वाला में स्लॉट में आपको रखेंगे, ठीक है। तो वो दोनों में से कोई एक पकड़ लेगा। ये कोशिश हमें करना है कि हम लोगों को चॉइस दें, करेक्ट। इनवाइट द प्रोस्पेक्ट 24 या 48 घंटे से पहले आपको इनवाइट करना है, 1 महीना पहले इनवाइट करके मत छोड़ो, ठीक है ना। हमेशा कोशिश ये करना चाहिए, या तो अगर आपने पहले इनवाइट कर दिया है तो आपको रिमाइंडर जो है 2 दिन पहले से रिमाइंडर चालू कर देना कि यार आपको मैंने एक इनवाइट दिया था ना, वो इनविटेशन का टाइम आ गया है, 30 तारीख को सेमिनार होने वाला दिल्ली के अंदर, इस एड्रेस में साई ऑडिटोरियम के अंदर हो रहा है, मैंने आपको इनविटेशन भेज दिया है। अब आप क्या करोगे, 28 तारीख को वापस क्रिएट करके हाँ रिमाइंडर डालना स्टार्ट करोगे। याद आपसे मेरी बात हुई थी, आपको मैंने एक इन्फॉर्मेशन दिया था, 30 तारीख को हमारी मीटिंग है और इस तरीके से आपको इस एड्रेस पे पहुंचना है, ठीक है। रिमाइंडर 1 2 3 4 5, मैक्सिमम 5, उससे ऊपर नहीं, वरना आदमी इरिटेट हो जाता है। 5 से ज्यादा रिमाइंडर नहीं डालना चाहिए, राइट। 2 दिन के अंदर 5 रिमाइंडर देके छोड़ दो, वो बंदा आ जाएगा, ठीक है। मेंटेन योर पॉस्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉस्चर हमेशा टाइट रखो, बिजनेस हो ना हो, किसी के सामने आप जब जा रहे हो, तो पॉस्चर इन द सेंस कि आपका आउटलुक, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पॉस्चर हमेशा जो होता है, एक आउटलुक आप उसको समझ लो, पॉस्चर हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए आदमी को। कई बार क्या होता है ना कि इंसान बिजनेस प्रोस्पेक्टिंग के लिए निकल जाता है, लोगों से बात करने चला जाता है, लेकिन उसका पॉस्चर बहुत डाउन होता है। मतलब उसको देख के लगेगा कि यार वो कहीं मतलब चाय पीने जा रहा है, एक्चुअली वो प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहा है, बिजनेस की बातें करने जा रहा है, लेकिन आप उसको देख के, आपकी बॉडी लैंग्वेज और उसका जो है ना, आप देख के दिल डॉल देख के आपको ये फीलिंग होगा, इसको लगता है किसी तड़ी पे चाय पीने जा रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कभी भी आप बिजनेस के पर्पज से घर से जब बाहर निकले, तो आपका पॉस्चर स्ट्रांग होना चाहिए, आपका आउटलुक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम चाल भी आपको अपने चलने के स्टाइल में कंट्रोल करना पड़ेगा, बात करने के स्टाइल में कंट्रोल करना पड़ेगा। जब आप किसी से उठते बैठते हैं, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, हैंडशेक कैसे करना, बहुत सारे पॉइंट्स उसके अंदर कवर होते हैं, राइट। तो मेंटेन योर पॉस्चर, करेक्ट। देन हम लोग आता है इसमें, जब भी आप किसी को इन्विटेशन करते हैं तो डायरेक्टली आप उसको जाके इन्वाइट करना मत स्टार्ट कर दो। उसके लिए एक तरीका होता है, 1 मिनट में मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को इन्वाइट करना है तो उसके अंदर, ये भी मेरा 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 पॉइंट्स नहीं है, ये सब मैंने ऑनलाइन कहीं ना कहीं से मैंने सर्च किया था, राइट। तो फैमिली, ऑक्यूपेशन, एग्री, इन्विटेशन, ये फ्लो को पकड़ के चलिए। कैसे पकड़ चलिए, पहले सबसे पहले कॉल करते हैं ना, इमीडिएटली मीटिंग के लिए इनविटेशन स्टार्ट मत कर दो आप, ठीक है ना। थोड़ा नॉर्मल तरीके से बात करो। प्रोफेशनल होने का मतलब ये नहीं है कि एकदम हेलो हाय करना स्टार्ट कर दिए। जिस व्यक्ति से जिस टोन में आप बात करते हो ना, आप उसी टोन में बात करना, उसके सामने प्रोफेशनल बनने की कोशिश मत करना। जिस व्यक्ति से जैसी आपकी बात होती है वही वॉइस टोन, वही स्टाइल रखना, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब आप इन्विटेशन के लिए फोन उठाते हो
और कोई व्यक्ति जब सामने वाला फोन उठा लेता है तो सबसे पहले आपको फैमिली के बारे में बात करनी है, परिवार के बारे में। लोग ये चाहते हैं कि लोग मेरे फैमिली के बारे में मुझसे पूछें, आप वो फिर आपसे पूछेगा, आप उसको अपनी फैमिली के बारे में बताओगे। तो एक फैमिली इंटरेक्शन होता है तो आदमी न्यूट्रल होता है, राइट, कि चलो एक दूसरे से फोन पे हुआ तो चलो स्टार्टिंग में 10 सेकंड फैमिली के ऊपर बात कर लिए, और कैसा चल रहा है आपका जॉब वगैरह, कैसा चल रहा है, अगर नौकरी करता है तो नौकरी, बिजनेस करता है तो बिजनेस, कैसा चल रहा है काम आपका, शानदार, बोले यार काम तो ठीक है एज यूजुअल, कुछ खास नहीं, बाकी चल रहा। हाँ सर, अब उसमें ये नहीं करना है कि यार क्या हो गया, ठीक नहीं चल रहा है, क्या हो गया, प्रॉब्लम चल रही है नौकरी में, ऐसे नहीं। हाँ, तो उसको जो वो बोले उसको न्यूट्रल पकड़ लो आप। वो बोल रहा है कि फैमिली में सब कुछ फर्स्ट क्लास है, जब ऑक्यूपेशन की आपने बात की, सामने वाला बोल रहा है कि यार नौकरी में तो बहुत दिक्कतें आ गई यार, अब तो जब से कोरोना काल आया है ना, बहुत परेशानी चल रही है, प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया है। तो सेम है, आपको क्या करना है यार, प्रॉब्लम तो अब भले ही आप नौकरी कर रहे हो या आप बिजनेस में हो, बोले यार हमारे बिजनेस में भी बहुत अप एंड डाउन चल रहा है यार, क्या बताएं, अभी तो हर जगह माहौल ऐसा ही है, ठीक है। उसने जो बोला उसको आप अपने ऊपर ले लो, सेम स्टेटमेंट आपको भी वहां पे देना है, तो वो आपसे ना रिलेट कर पाएगा, वो समझना, ठीक है ना, वो आपसे और कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, वो आपसे और खुल के बात करेगा, राइट। जब वो आप फैमिली के बारे में डिस्कशन हो गया, ऑक्यूपेशन के बारे में डिस्कशन हो गया, तो वहां पे आपको एग्री करना है हर चीज से, डिसएग्री नहीं करना। उसने बोला कि मेरी जॉब बहुत फर्स्ट क्लास चल रही है, कोई व्यक्ति अगर ये बोल देता है कि मेरी नौकरी तो फर्स्ट क्लास है बाबा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है यार, बढ़िया इंक्रीमेंट हुआ है इस साल, शानदार इंक्रीमेंट, फॉरेन ट्रिप भी मिल रहा है, मालूम है, सब फॉरेन ट्रिप भी जा रहे हैं। अब आप उसको ये मत कर देना वहां पे कि अच्छा नौकर तो नौकरी रहे हो, नौकरी तो कर रहे हो, कुछ और थोड़ी कर लिया भाई, इतना क्यों खुश है, गलती मत करना जी। कई बार होता है लोग जॉब जॉब करके ना लोगों को, सामने वालों को ऐसे बोलते हैं कि अरे यार नौकरी तो नौकरी होता है ना भैया, फॉरेन चले जाओ चाहे जो कहीं भी चले जाओ। आपको जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है ड्यूरिंग इन्विटेशन, आपको एग्री करना है। वो बोल रहा है अच्छा चल रहा है तो एग्री करो, वो कह रहा है प्रॉब्लम चल रहा है तो एग्री करो, ठीक है ना। जब आपने ये 3 स्टेप क्लोज किया, देन आपको वहां पे इन्विटेशन करना है। अब इन्विटेशन का तरीका क्या होगा, अब इसको याद रखना, FOAI, ठीक है ना। F फॉर फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशन, A फॉर एग्री, I फॉर इन्विटेशन, करेक्ट। हमने स्टार्टिंग में फैमिली के बारे में डिस्कस किया, फिर ऑक्यूपेशन पे आए, देन दोनों चीजें डिस्कशन होने पे मैंने एग्री कर लिया कि नहीं बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। वो बंदा 3 पॉइंट कवर करते करते 20 25 30 40 सेकंड तक वो बंदा आपसे ना एकदम कनेक्ट उसका बैठ जाएगा, ठीक है। देन अगेन लास्ट में जो है उसमें आपको इन्विटेशन ठोकना है। आपको अब इनविटेशन करने के तरीके बहुत डिफरेंट डिफरेंट, राइट। अब उसमें जैसे मैं नॉर्मली जब इनवाइट करता हूँ किसी सेमिनार के अंदर, या कोई जब पर्सनली जब मुझे किसी से मिलना होता है, तो मैं इसको अपने स्टाइल से करता हूँ, मैं इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मैं जो बोलने वाला हूँ उसको आप चाहो तो यूज करो, नहीं चाहो तो आप अपना तरीका भी लगा सकते हो। अब वहां पे मैं जैसे बोलता हूँ यार अभी अभी ना मैं अपने जॉब के साथ साथ मैंने एक D2C ब्रांड पे काम स्टार्ट किया है। अब सामने वाला बंदा क्या हो गया, कंफ्यूज। D2C ब्रांड, अरे यार देखे नहीं हो आजकल इतने सारे ब्रांड मार्केट में आ गए, कहाँ टीवी में ऐड आता है यार, नया कंसेप्ट आ गया है मार्केट के अंदर, D2C ब्रांड पे लोग काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, 2 4 कंपनी के नाम ले लो जो मैं नॉर्मली लेता है। शुगर कॉस्मेटिक है, शुगर कॉस्मेटिक का नाम सुना है आपने, वाओ कंपनी का नाम सुना है, ठीक है ना, वाओ कंपनी है, उनके आपने फेसबुक के साथ कैंपेन देखो, सब D2C ब्रांड है सर। तो मैंने इस पे मेरी मास्टरी है इसके ऊपर, एक बहुत शानदार मेरे पास बिजनेस कंसेप्ट आया है और मैं इस पे भी काम कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यार आप तो अपने आदमी हो, एक बार मैं चाहता हूँ आप भी बैठो मेरे साथ, डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, कब कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अब उसमें ज्यादा सवाल जवाब करे तो अगेन आपको वहां पे रोक देना है, बोले यार इतना इतना समझाने की नहीं है, मैं भी समझने की प्रोसेस में हूँ। कई बार आप भी अपने आप को लर्निंग फेज में बताओ कि यार मेरे को ज्यादा पता है भी नहीं। इनविटेशन बहुत स्मार्टली करना पड़ता है। कई बार आपको क्या करना है ना कि उसको इनवाइट कर रहे हो तो आप खुद अनजान बन जाओ, पता नहीं यार कुछ तो हो रहा है, बहुत जबरदस्त हो रहा है, डिटेल आपको वहीं पे समझ, मैं खुद भी प्रोसेस में, मैं खुद भी समझ ही रहा हूँ इस चीज को। लेकिन आज उसका बहुत जबरदस्त उसका एक्टिविटी हो रहा है, प्लान हो रहा है, बिरला ऑडिटोरियम करने का कंपनी का प्रेजेंटेशन है, मैं उसको अटेंड करने जा रहा हूँ भाई। मैं तो टाइम पे पहुंचूंगा, तुम बताओ तुम आ रहे हो कि नहीं, वरना फिर मैं किसी और को लेके जाऊंगा, ठीक है। बोलेगा नहीं साथ में चलते हैं बॉस, ठीक है डन करो, 2 बजे पहुंचना है बॉस, आप बोलो तो मैं लेने आ जाऊं आपको, या अपन साथ में चलते हैं, कोई भी अपना करके 1 मिनट के अंदर क्लोज करो, खत्म, ठीक है ना। ये तरीका मैं नॉर्मली मैं अपनाता हूं और ये इफेक्टिव है। अब वो देखो मैंने यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, D2C ब्रांड, एक नया टर्मिनोलॉजी है, लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं, ठीक है। लेकिन क्या मैंने D2C ब्रांड के बारे में बहुत खुल के बताया, क्या नहीं बताया, ठीक है ना। मैंने इसके लिए रखा कि आप वहां पे आओ, वहां डिटेल प्रेजेंटेशन चलेगा, मैं भी समझूंगा और आप भी, हम दोनों मिलकर समझेंगे वहां पे, समझ में आए तो आगे बढ़ेंगे, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, ठीक है चलते हैं, चलो करते हैं, कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं इसको, अपन 2 बजे मिलते हैं वहां पर, ठीक है। ये एक तरीका ये हो गया। देन
जब ये इनविटेशन प्रोसेस जब कंप्लीट होता है ना, तो वहां पे आपको डेट टाइम और प्लेस पे आपको फिर एम्फेसाइज करना है। इनविटेशन में कंपनी ब्रांड क्या काम है उससे बचना है अगर, तो आपको डेट टाइम और प्लेस पे एम्फेसाइज करो जब भी इनविटेशन पे जाइए। हालांकि मैंने पॉइंट पहले डिस्क्राइब कर दिया है, फिर भी मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं। कभी भी इनविटेशन के दौरान आपको कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का प्रेजेंटेशन, इस पे बात नहीं करनी। इनविटेशन जो है और प्रेजेंटेशन दोनों डिफरेंट चीज है, ठीक है। इनविटेशन 1 मिनट का होता है, प्रेजेंटेशन 2 घंटे का होता है, ठीक है। तो हमें प्रेजेंटेशन नहीं देना, हमें इनवाइट करना। इनविटेशन कैसे देना है, तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन है तो उसमें हम लोग डेट, यानी कि डेट मतलब किस तारीख को इवेंट हो रहा है, टाइम कितने बजे हो रहा है, प्लेस किस जगह हो रहा है, ये 3 वर्ड को पकड़ लो, ठीक है ना। और उसको आप बोलो कि भैया यहाँ पे अपने को टाइम पे पहुंचना है, बॉस टाइम पे पहुंचना है, ये डेट है और ये लोकेशन है, मैं आपको शेयर कर दिया हूँ, आप टाइम पे आ जाना वहां पे, मैं आपको रिमाइंडर कर दूंगा, ठीक है। ओके ओके, थैंक्स करके मैं बात करता हूँ आपसे, मैं आपको फिर कॉल करता हूँ, राइट। फोन डिस्कनेक्ट, आगे बढ़िए फिर वहां से। अब वो सामने वाला व्यक्ति को कुछ समझ में आया क्या, नहीं आया ना, ठीक है। तो हमें उनको क्यूरियोसिटी जो है जगा करके छोड़ देना, समझ गए। कई बार आप देखते हो, देखिए ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर जैसे मिंत्रा वाला क्या करता है, कभी कभी फेसबुक पे एड कैंपेन चलाता है और वहां पे दिखाएगा एसिक्स एक ब्रांड है, ठीक है। एसिक्स ब्रांड जो है वो दिखाएगा 1200 रुपए में जूता मिल रहा है उसका, ठीक है, स्पोर्ट्स शूज। आदमी क्या करता है, यार एसिक्स ऐसा ब्रांड का 1200 में मिल रहा है क्या, वहां पे क्लिक करता है खुद से, ठीक है ना। क्यूरियोसिटी जगा दिया, क्योंकि एसिक्स एक ऐसा ब्रांड है जो नॉर्मली 3000 4000 से स्टार्टिंग ही रेंज है उसका, राइट। 3500 4000 5000 से उसकी शुरुआत होता है। तो 1200 सुनकर के आदमी क्या क्यूरियोसिटी दिमाग में हुआ, यार एसिक्स के शूज 1200-1300 रुपए में मिल रहा है, तुरंत क्लिक किया। क्लिक करते ही जैसे ही आप पेज पे गए, लैंडिंग पेज पे जैसे ही पहुंचते हो आप, देन वहां पिक्चर कुछ और होता है। फिर आपको वहां पे ना शूज भी दिखा रहा है, बेल्ट भी दिखा रहा है, चश्मा भी दिखा रहा है, टी शर्ट भी दिखा रहा है, दुनिया भर के सामान वहां पे आपको दिखाता है। आप जब लैंडिंग पेज पे जाते हो तो जरूरी नहीं है, अब आपके सामने उसने कोई दुकान खोल दी, आप गए थे 1300 रुपए का शूज देख करके, राइट। लेकिन वहां पे गए तो वही 1300 रुपए का शूज जब आप उस पर जाते हो तो मालूम चला वो 6 नंबर का है साहब, यानी कि बच्चों के लिए। तो भी लगा रहे यार तो हमारे लिए है ही नहीं। लेकिन साथ साथ में उसने आपको वहां पे लगातार कोई ढेर सारी पिक्चर दिखा दी कि सर देखो ये ईयरफोन है, ये हेडफोन है, मोबाइल इतने का आ रहा है, ये ऑफर वो ऑफर। आदमी क्या लैंडिंग पेज में देखो 20 सेकंड 25 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट ऊपर गुजार दिया, इसका मतलब उसका काम हो गया, ठीक है ना। आप लैंडिंग पेज पे गए और वहां पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया, और यार ये भी क्या ऑफर, इसमें भी क्या ऑफर, आपने देख लिया, कंपनी काम हो गया। जो फेसबुक कैंपेन चलाया उस बंदे ने, चलाने के बाद उसका काम तो हो गया, आप लैंडिंग पेज पे पहुंचे और आपने 1 मिनट से ऊपर वहां पर निकाल दिया, काम काम खत्म उसका, ठीक है ना। तो क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी है और मार्केटिंग टूल भी है। हमेशा बात याद रखिए, कोई भी आप जितना मूवी का जब ट्रेलर लॉन्च होता है तो कितना क्यूरियोसिटी जगा देता है कि अरे आपका शानदार मूवी होगा यार, मजा आएगा, कब लॉन्च हो रहा है, इस डेट को लॉन्च हो रहा है, RRR क्या मूवी है, शानदार मूवी होगी, क्या ट्रेलर बनाया है बॉस, पिक्चर कितना शानदार होगा। तो हमें इन्विटेशन जो होता है वो मूवी का ट्रेलर की तरह होना चाहिए, ठीक है। ट्रेलर अगर 3 घंटे का मूवी है तो ट्रेलर कितने देर का होता है मालूम है आपको, 40 सेकंड, 30 सेकंड, 35 सेकंड का ही ट्रेलर होगा। लेकिन उस ट्रेलर को इस लेवल पे डिजाइन किया जाता है कि आप उससे ये विजुअलाइज करते हो कि पिक्चर कितनी शानदार होगी। लेकिन कई बार धोखा हो जाता है, जब जाते हो लगता है यार ट्रेलर कितना शानदार बनाया, मूवी कितना घटिया बनाया है ना, लेकिन उसका काम तो हो गया ना, ठीक है। इस चीज को हमें समझना है, यानी कि इस बिजनेस में हमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप किसी को इनवाइट करते हो तो इनविटेशन के दौरान आपको जो है ट्रेलर पे देना है, पूरा मूवी नहीं दिखानी। हमें बिजनेस के बारे में, बिजनेस का जो प्रेजेंटेशन है वो होने वाला है उसके बारे में बताना, यानी कि डेट टाइम प्लेस, डेट टाइम प्लेस दिमाग में सेट कीजिए, डेट टाइम प्लेस। 30 तारीख को सेमिनार हो रहा है दिल्ली के अंदर, आप जब इनविटेशन डालो तो बोलो कि आप उनको बोलो कि जबरदस्त इवेंट होने जा रहा है एटमी इंडिया का, वहां पे शानदार इवेंट होने जा रहा है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जो भी आपको बोलना है उसको थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ बोलो, और बोलो कि बॉस कमाल का है, वहां पे कुछ साउथ कोरिया से लीडर्स आ रहे हैं, इस तरीके से आप जो भी आपको डिजाइन करना है अपने लेवल पे अपना स्क्रिप्ट तैयार कीजिए। और वहां पे जब बोलोगे देन अगेन वहां पे डेट टाइम प्लेस, डेट टाइम प्लेस, 30 तारीख 2 बजे से, और साई ऑडिटोरियम, ठीक है ना, आपने डाला। फिर आपने रिपीट किया डेट टाइम प्लेस, डेट टाइम प्लेस, 2 बार 3 बार बोल करके छोड़। अरे क्या है मीटिंग, कौन सी मीटिंग, काय की मीटिंग, क्या है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बस इतना या उसको इतना ही रियलाइज कर देना है कुछ तो बड़ा हो रहा है भाई, ठीक है। तो ये जो कुछ ट्रिक्स मैंने आपको बताया अभी, राइट। अब हमें कुछ उस चीज पे चलना पड़ेगा, कुछ चीजें हमें अवॉइड करनी पड़ेंगी। अवॉइड क्या करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग इन्विटेशन कुछ चीजें हमें अवॉइड करनी, जैसे डोंट शो योर नीड्स, मतलब किसी के सामने आप जाकर के ऐसा मत शो करो कि यार मुझे आपकी जरूरत है, ठीक है ना। इनवाइट भी आप सर आ जाना सर, बिल्कुल आप आओगे ना, मतलब मेरे टीम में तो मोटिवेशन में मतलब आग लग जाएगा, वहां पे आप आओगे ना तो मजा आ जाएगा सर,
पूरा सेमिनार में मतलब वाहवाही हो जाएगी, समझ लो। ऐसा कुछ नीड मत उसको दिखाइए कि मेरी जरूरत है आप आओ, नहीं, इसको बोलने से हमें बचना पड़ेगा, ठीक है। गिविंग एटीट्यूड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। गिविंग एटीट्यूड करने का मतलब यहाँ पे है कि बेगिंग एटीट्यूड नहीं रखना है, मांगना नहीं है साहब, आ जाओ, रिक्वेस्टिंग मोड पे हमें काम नहीं करना, क्योंकि हम देने जा रहे हैं अपॉर्चुनिटी, करेक्ट। वहां पे जब जहां पे मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं वहां पे कुछ आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगा, समझ में आए तो करो, नहीं समझ में आए बाय बाय, ठीक है ना। तो आपको गिविंग एटीट्यूड लेके, गिविंग एटीट्यूड रखोगे तभी आप कॉन्फिडेंस में बात करोगे, तभी आप एक्साइटमेंट में बात कर पाओगे। अगर बेगिंग एटीट्यूड रखा, यानी कि मांगने वाला एटीट्यूड रखा, तो लोग भी नहीं आने वाले आपके, करेक्ट। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। देन अच्छा, जब भी आप किसी को जब आप कॉल करते हो ना, तो कॉलिंग के प्रोसेस में कुछ चीजें हमेशा बहुत नहीं रिपीट में होता है कि आप किसी को जब कॉल करो तो ये मत बोलो कि यार आप बिजी तो नहीं हो, सर आपके पास टाइम है क्या, बात हो सकती है क्या, ज्यादा नहीं, उतना रिक्वेस्टिंग मोड पे नहीं करना। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर बहुत जरूरी होता है एक एटीट्यूड। हल्की हल्की में जाओगे ना तो सामने वाला आदमी तुरंत भाव, मतलब 1 सेकंड नहीं लगता उसको समझने। उसे पूछना नहीं है कैन आई टॉक टू यू, क्या 2 मिनट है आपके पास, नहीं, सीधा फोन उठाया, हेलो कैसे आप, कैसे हो आप, फर्स्ट क्लास, और क्या चल रहा है, बढ़िया, जॉब कहाँ, ये कहाँ, वो कहाँ करके उसको इन्विटेशन डाल दो वहां, ठीक है ना। समय क्या, समय बात हो सकती है सर, ये सब करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आपका गिविंग एटीट्यूड वहां पे होना चाहिए। जब हम लोग अपने सेल्स में जब क्लाइंट से बात करते हैं, क्योंकि उस वक्त हमें कुछ देना नहीं है, हमें कुछ लेना भी है, करेक्ट, बिजनेस हमें उनसे चाहिए, तो हम लोग कभी कभी उस टेक्निक को यूज करते हैं कि सर कैन आई टॉक टू, 2 मिनट के लिए बात हो सकती है, ठीक है सर, अच्छा सर मिलना चाह रहा था, कब मिलने आपसे, आज शाम को मिलने, कल मॉर्निंग का रखें, टेक्निक वही है वहां पे भी, राइट। तो ये सब प्रोसेस, इस चीज को आप समझना। कभी भी हमें सामने वाले बंदे को फोन करके नहीं बोलना सर बिजी तो नहीं है, ये सब कुछ कुछ वर्ड है जो नॉर्मली यूज करते हैं लोग, इससे बचना चाहिए। डू नॉट हेजिटेट व्हाइल यू टॉकिंग टू समवन, कभी भी किसी से जब आप बिजनेस में इन्विटेशन के या प्रोसेस के तहत हैं, तो आप कभी भी हेजिटेट मत करो बात करने। बहुत हेजिटेट नहीं, नहीं करना है आपको, ठीक है सर, वो एक्चुअली ये ना मतलब ये है, और मतलब आप समझ रहे हो ना सर, वो एक्चुअली एक तरीके का मीटिंग है, और मतलब वहां पे बहुत लोग आ रहे हैं, मतलब बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है ना। ये सब करने की जरूरत नहीं, हेजिटेट मत करो। वन लाइनर प्रैक्टिस कर लो ना, मिरर के सामने जाके खड़े हो जाइए, प्रैक्टिस कर लीजिए, 2 बार 3 बार 5 बार जोर जोर से बोलिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर लो। 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप जबान पे आ जाए। और जब फिर से मैं कह रहा हूं, जब आप गिविंग एटीट्यूड रखोगे तो 100% वो कन्विक्शन दिखेगा, ठीक है। Don't use earning lakhs of rupees, become करोड़पति, big dream car, Mercedes, BMW, ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं है कि एक ऐसा बिजनेस प्लान है, अगर आपने उसमें बिजनेस हमारे साथ जुड़ गए तो आने वाले समय में आप लखपति हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे, आपकी इनकम इतनी से इतनी हो जाएगी, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। आपके सपने पूरे हो जाएंगे, कार घोड़ा गाड़ी के बारे में बात नहीं करनी है, अवॉइड कीजिए। अगर आपने ये सब टेक्नोलॉजी यूज किया, सामने वाला बोलेगा यार ये वही वाला आदमी है जो पिछली बार मैं किसी ने मुझे बुलाया था, मैं चला गया था, वहां पे भी ऐसी बातें हुई थी, अब वो कंपनी तो है नहीं, ये भी कुछ नई कंपनी उड़ती हुई आई है, ये भी आज रही कल चली, क्योंकि ये बातें आज के डेट में सब लोग कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा स्मार्टली, हमें थोड़ा अपने आप को डिफरेंशिएट करना होगा अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से, क्योंकि बाकी कंपनी में अगर आप चलो, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बाकी कई सारी कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी जो आज ये हिंदुस्तान में काम कर रही है, वहां पे वही बातें होती हैं सर, घोड़ा गाड़ी मर्सिडीज में, और ये लाखपति करोड़पति अरबपति, सपने पूरे हो गए, सपने सपने, अरे ठीक है, हमें वो वर्ड्स यूज नहीं करते, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और आगे मैं आपको बताता हूं, कुछ सवालात होते हैं साहब, कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि क्वेश्चंस होते हैं जो आपके जहन में भी आ रहा हो। एक तो हमें फेस टू फेस मीटिंग करना अवॉइड करना चाहिए, किसी को इनवाइट करना तो आप उसके घर जाके उसको इनवाइट करो, ऐसा नहीं, ठीक है ना। कोशिश कीजिए मैसेज पे बात हो जाए, कोशिश कीजिए फोन पे बात हो जाए, कोशिश कीजिए जूम पे आप फेस टू फेस उसको आपने इनवाइट कर दिया, उतना आप कर सकते हो, लेकिन किसी के घर जाकर के इन्विटेशन करना, उसको हो सके तो अवॉइड कीजिए। अगर कोई टकरा ही गया मार्केट में तो बात अलग है, ठीक है, अदरवाइज इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। हाउ टू इनवाइट, हाउ टू इनवाइट नॉट इन टच, और कई लोग ऐसे होते हैं ना जब जिससे आप पिछले 6 महीने से टच में नहीं, मतलब 6 महीना इन द सेंस, मान लो कि पिछले 2-3 महीने से आप उससे बात आपकी हुई नहीं है, अचानक से उसको फोन करोगे और बोलोगे कि बिजनेस मीटिंग है, ये वो करके इनवाइट करोगे, वो नहीं आए, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जिस व्यक्ति को आप इनवाइट कर रहे हो पर्टिकुलर किसी मीटिंग के दौरान, मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हो ना, तो आपको ये होना चाहिए कि क्या मैं उससे कम्युनिकेशन में रहा हूं पिछले 15 दिनों में। अगर 15 दिनों में कम्युनिकेशन में नहीं हो तो पहले उससे 1-2 बार फॉर्मल बातें करो। जिसको प्रेजेंटेशन देना है, जिसको कल को प्लान दिखाना है, उससे रिलेशनशिप बिल्डअप करना शुरू कर दीजिए। अगर कोई आपके लिस्ट में 5 लोग ऐसे हैं जिसको आपको प्लान दिखाना है, राइट, और आपको लग रहा है कि इस आदमी से मिले हुए तो मुझे महीने भर हो गए यार, मैं मिला ही नहीं हूं, तो प्लान दिखाने से पहले जाके उससे मिलो,
फोन पे बात करो, मैसेज करो, थोड़ा सा हंसी मजाक कर लो, घर पे जाकर के मिलो, और कैसा चल रहा है, घर में सब ठीक ठाक है, ये सब बात कीजिए। 2-4 दिन 5 दिन ऐसे ही निकालना पड़ेगा। डोंट डिस्कस अबाउट बिजनेस प्लान, बिजनेस और इन्विटेशन। कोई भी मीटिंग के लिए इन्वाइट मत करो। जब ये 5-7 दिन लगातार आप उनसे कम्युनिकेशन में आ जाओगे, देन आप अपना स्क्रिप्ट यूज करना और उनको इन्वाइट करना, फिर वो कहानी वहां पे समझ में आए। करेक्ट। इफ द प्रोस्पेक्ट डजंट पिक योर कॉल, अगर कई बार होता है कि हम लोगों को इन्वाइट करते हैं, फोन ही नहीं उठाया साहब, तो क्या उनको कॉल करना है दोबारा या छोड़ दें? होता है ना सबके साथ, आपने इन्विटेशन के लिए कॉल किया, सर कॉल ही नहीं उठाया। करेक्ट। अब जब कॉल नहीं उठाते तो क्या करना है यार, उसको दोबारा करनी, बिल्कुल करना है, लेकिन बार इमीडिएटली कॉल मत करो। एक बार आपने कॉल किया, नहीं उठाया, कोई बात नहीं, 10 मिनट छोड़ दो, 2 घंटे 3 घंटे, सुबह 11 बजे कॉल किया, नहीं उठाया, फिर आप उसको करो 3-4 बजे के आसपास कॉल करो, ठीक है। फिर मान लो नहीं उठाया, तो फिर शाम को 6-7 बजे कॉल करो। फिर नहीं उठाता तो उसको एक मैसेज ड्रॉप कर दो, अरे कहीं बिजी चल रहा हो क्या यार, मैं एक्चुअली कुछ बात करना चाह रहा था। फिर देखो उसका रिवर्ट आता है कि नहीं आता, 100% रिवर्ट आएगा, ठीक है ना। जब उसको उससे जब रिवर्ट आता है, देन अगेन आप उसको अपना प्रोसेस जो है इन्विटेशन का प्रोसेस वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इफ समवन आस्क्स ऑन सोशल मीडिया व्हाट, अच्छा सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे इन्विटेशन चलते हैं। कई बार आप सोशल मीडिया पे इतने सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं, वहां पे कई लोग आते हैं, बोलते हैं क्या कर रहे हैं साहब, ये काय का बिजनेस है, होता है ना ऐसा, ठीक है। सोशल मीडिया में आके पूछते हैं ना लोग, कौन सी बिजनेस है, कौन सी कंपनी है, क्या प्रोडक्ट है। अब उसको कैसे आप उसको इन्विटेशन दोगे, कैसे उसको इन्वाइट करो, सोशल मीडिया वाला व्यक्ति है वो, ठीक है। तो सोशल मीडिया के जो व्यक्ति जो जो प्रोस्पेक्ट होते हैं, जो क्वेरी कर रहे हैं, आपसे सवालात कर रहे हैं, उसको कैसे इन्वाइट करना है ना। उसको इनवाइट करने के लिए सोशल मीडिया का टेक्निक थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे आप किसी से बहुत क्लोजली, आपका जो फ्रेंड सर्किल है, आपकी जो लिस्ट है, जैसे तो हम लिस्ट की हम लोग बात करते हैं, उसको तो आप जानते हो ना, उसको तो पहचानते हो, मिले हो 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार मिल चुके हो, चाहे वो आपके स्टेट में रह रहा हो चाहे किसी और भी स्टेट में रहा, आप जानते हो। लेकिन सोशल मीडिया पे क्या होता है, एक वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट मींस उसको मैंने फिजिकल देखा नहीं, मिला नहीं, कभी नहीं, मुझे पता ही नहीं बाद में कौन है। अब उसको अगर आपको इन्वाइट करना तो कैसे करना पड़ेगा, वहां पे अब बात आती है कि जैसे ही किसी ने पूछा कि यार क्या आप जो डिस्प्ले कर रहे हो क्या है, कि किस चीज की कंपनी, कौन सा प्रोडक्ट है आपके पास, क्या प्रॉब्लम है, ये है वो, करके सवाल करता है, उसको मीटिंग में इनवाइट इमीडिएटली मत करना, उससे रिलेशनशिप बिल्डअप कीजिए पहले। आप क्या करते हैं, आपका घर कहाँ है, घर में कौन कौन है, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सब बातें आपने करना स्टार्ट किया। फिर वो आपसे 2 बार 3 पूछेगा, आप क्या करते हो, कौन सा कंपनी है, क्या नहीं है, वो बोले वो तो मैं आपको 100% बताऊंगा, बट ठीक है आप आपसे चूंकि फर्स्ट टाइम मिला हूं तो थोड़ा सा हम लोग जनरल मैं जानना चाहता हूँ आपके बारे में, आप इंटरेस्ट होकर उसके उसके लाइफस्टाइल के बारे में, और क्या आपका इंटरेस्ट है, कहाँ काम कर रहे हो, क्या फोकस है आपका, क्या करना चाहते हो, ये सब बातें करके थोड़ा रिलेशनशिप बिल्डअप करो। उसके बाद उसको इन्वाइट करो। आप बहुत सही कर रहे हो, आप बहुत सही जगह पे काम कर रहे हो, आप डिजिटल पे काम कर रहे हो, आप डिजिटल एजेंसी खोल के बैठे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर उसी के साथ साथ मैं अगर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दूं जहां पे आप अपने काम के साथ साथ अगर कुछ अपने आप को डेवलप कर पाओ और अपने बड़े लेवल पे कल को आप अर्निंग कर पाओ, आने वाले टाइम में लोगों को आप सपोर्ट कर पाओ, तो क्या ऐसे अपॉर्चुनिटी को देखना चाहोगे? करना नहीं, देखना चाहोगे? ये सवाल आपका होगा। देखने के लिए क्या मना करेगा वो? नहीं, मैं देखना भी नहीं चाहता साहब। कॉमन सेंस क्या कहता है, कोई आदमी अगर मुझे करने के लिए बोलेगा तब तो मैं क्वेश्चन करा, यार करना तो रुको यार, अभी तो पता नहीं है, पहले देखते हैं पहले, ठीक है। तो कभी भी किसी को आप जब इनविटेशन देते हो या कुछ बताते हो, कुछ डिस्कशन करते हो, वहां पे जब आप बोलोगे तो उसको ये नहीं बोलना है कि अगर ऐसा कुछ अगर आपके साथ हो तो क्या आप करना चाहोगे? करना नहीं, देखना। उसको चेंज कीजिए, करना नहीं, देखना। अगर आपने आपकी जो बिजनेस है बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं, आप तो आपका खुद का रेस्टोरेंट, मान लो कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, ठीक है ना, आप तो शानदार, आपका रेस्टोरेंट है, दिन भर आपका बढ़िया चल रहा है और आगे भी रेस्टोरेंट का तो बहुत अच्छा ट्रेंड है, बहुत अच्छा डिमांड है मार्केट में, लोग खाने के लिए पीछे तो बहुत पागल होते हैं, आपका काम तो 100% बहुत शानदार चल रहा होगा, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है तो ऑनलाइन भी काफी सारे ऑर्डर्स आपके पास आते होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ यहाँ पे जो मेरा मुद्दा ये था मुझे कॉल करने का, कि जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जितना टाइम आप इस बिजनेस में लगा रहे हो, इसी बीच में अगर मैं आपको ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दूं जहां पे कुछ बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए हुए, यानी कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, स्पेशली आप जिस जगह बैठे हो वहीं से बैठे बैठे अगर मैं आपको कुछ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दूं जहां पे आप अपने काम को बढ़ा सको और आने वाले टाइम में एक बड़ा लेवल पकड़ सको और अच्छी कमाई कर सको, तो क्या उसको आप देखना चाहोगे? वो क्या बोलेगा, हाँ हाँ दिखाओ, ठीक है ना, बिल्कुल देखना चाहेंगे, क्यों देखना चाहेंगे यार, ठीक है। तो सर ऐसी सी बात, अब उसको वहां पे इन्विटेशन पे ले आओ तुरंत कि हमारा एक डिटेल प्रेजेंटेशन होने वाला है, बहुत ही शानदार, ऑनलाइन हमारा जूम का 9 बजे का लिंक है और बहुत ही जबरदस्त मीटिंग होगा आज। जो हम जिस जिस व्यक्ति से हम लोग बात करने वाले हो, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग, अरे यार कुछ ऐसा वैसा, तो सर कोई सवाल नहीं, आप देखने आ रहे हो, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि आपको करना नहीं करना, होना नहीं होना, सब बात की बातें हैं, आपको केवल देखना है और समझना है बस, ठीक है ना। आपने उसको इन्विटेशन डाला,
लिंक शेयर किया और आपको वहां पे एक मैसेज डाल दिया कि टाइमिंग इतना है, फिर आपको क्या खेलना है वहां पे, टाइम लोकेशन पे आपको देना है, जूम मीटिंग टाइम, जूम मीटिंग टाइम, जूम मीटिंग टाइम, दैट्स इट। ये करके क्लोज करो, बंदा आएगा आपकी मीटिंग सेमिनार को अटेंड करेगा। उसके बाद जो होता है वो फॉलोअप का प्रोसेस होता है, वो आप लोग को कभी किसी और प्रेजेंटेशन के अंदर बताएंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोअप। तो ये जो मैंने आज आपसे शेयर किया, राइट, ये था एक टेक्निक, ठीक है ना। इनविटेशन के ऊपर बातें बहुत की जा सकती है इनविटेशन के ऊपर, क्योंकि एक ऐसा स्किल है जो अपडेट होता रहता है ना। एक वो ओल्ड पैटर्न पकड़ के नहीं चलना, हमें अपने आप को अपडेट करते रहना है, करेक्ट। अब सोशल मीडिया पे मैक्सिमम लीड्स जनरेशन की बातें होती हैं। अब आप देखो लोग कैंपेन चलाते हैं, कैंपेन चलाने के बाद लीड्स आता है, लीड्स को कन्वर्ट करना कितना, अब उसके लिए क्या टेक्निक यूज करना चाहिए, वो इन्विटेशन डिफरेंट है। कभी भी लीड जनरेट करने के लिए आपको उससे एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना पड़ेगा। रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए कितना टाइम लगाना है आपको, 5 दिन 7 दिन, दैट्स इट, उससे ऊपर नहीं। 5-7 दिन आप उससे बात इधर उधर ही करो, बिजनेस की बातें नहीं करनी, इधर उधर की बातें करना है, फैमिली में कौन है, क्या है, कैसा है, ये वो, हेलो हाय, डेली बेसिस पे आप गुड मॉर्निंग करना स्टार्ट करो। देन अगेन उसको, वो आपसे पूछेगा एक्चुअली आप करते क्या हो, ये प्रोडक्ट के बारे में आपने बताया नहीं यार, इसकी एक डिटेल प्रेजेंटेशन बहुत शानदार आज रात को होने वाली, मैं चाहता हूँ कि आप उसको अटेंड करो, ठीक है ना। तो पॉसिबल है क्या, वो बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तो मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, लेकिन भूलना मत एग्जैक्ट फिर वही बात करना आपको, रात को 9 बजे संडे का दिन, रात को 9 बजे संडे का दिन, रात को 9 बजे, एक बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है ना। देन अगेन आप उसको इन्विटेशन भेजते हो, वो बंदा आएगा। तो ये इन्विटेशन का है क्यूरियोसिटी जगाना। इन्विटेशन इज ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी। अगर आपने उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी जगा दी तो बंदा मीटिंग देखने आएगा, अगर उसने आपको उधेड़ दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था प्रेजेंटेशन, मैं 1 घंटे में खत्म करना चाह रहा था, ऑलमोस्ट मैं पीपीटी ऑलमोस्ट डन हो चुका है, और आई होप कि इसमें कई सारे सवाल लोगों के जहन में सवाल भी होगा, राइट। तो आप लोग क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है। क्यूरियोसिटी के ऊपर भी मैं एक अलग से मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है, वो भी मैं कभी आप लोग को शेयर करूंगा, बट आज इन्विटेशन की बात करनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं 2-3 फेज में कंप्लीट करूंगा, राइट। ये एक पहला फेज था, इसमें मैंने बहुत शॉर्ट में निकाल दिया, अब इसमें डिटेल एक एक पॉइंट को मैं डिस्क्राइब करूंगा, वो आगे देखेंगे अभी, क्योंकि ये महीना बड़ा क्रिटिकल है, कई सारे मीटिंग्स हैं, उसकी प्लानिंग है, राइट। तो हम लोग करेंगे इसके ऊपर बात। प्लीज राजेश झा जी, प्लीज आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार आप अपना व्यू रखें, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ओवर टू यू। यस राजेश। सर सर सुपर सर, आपने गागर में ना बिल्कुल सागर डाल दिया, बहुत मजेदार सर, मजा आ गया, रियली मजा आ रहा था, मतलब सर थैंक यू, मतलब जबरदस्त जबरदस्त सर, थैंक यू। मैं तो राइट मतलब एकदम मंत्र मुग्ध था जब आप बता रहे थे ना, तो कुछ पॉइंट जो आप ले जा रहे थे, इतना जबरदस्त पॉइंट था, जो मतलब मुझे लग रहा था कि मैं मतलब क्लैपिंग कर सकता, तो बहुत जबरदस्त था। और लोग इसको अगर यूज कर लेना, मैं रियली बताऊं, इस बिजनेस में, किसी बिजनेस में इनविटेशन जो है वो बैकबोन है। जैसे मैं कोचिंग चला रहा हूं, अगर मैंने कुछ पेरेंट्स को इनवाइट किया कि भाई बच्चे को आपको एडमिट करना है, अगर वो इनवाइट में आए ही नहीं तो गए काम से। मैं बिल्डर हूँ कोई भी, तो सर गजब का, मतलब रियली, और वाकई इनविटेशन बहुत जबरदस्त था, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सर, इस तरह का सेशन डिजाइन किया करो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, थैंक यू। राइट राजेश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राइट, और कोई कुछ शेयर करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, कुछ हेलो, ऐड ऑन करना? यस, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी रितेश जी बताइए। राइट राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो एक तो देखिए, आज का जो सेशन है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम लोग एक बात जो मार्केट में लगातार प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस समझिए। कंपनी में, एक्मी में एक बात बोली जाती है कि आप सिर्फ एक्मी का सिस्टम फॉलो कर दीजिए, ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस सिस्टम में सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट होता है सक्सेस सेमिनार एंड 1 डे सेमिनार लोगों को अटेंड कराना, दैट्स इट। आप इंपीरियल मास्टर से बात कर लीजिए, रॉयल मास्टर से बात कर लीजिए, अभी जो जितनी भी स्टोरी आ रही है, आज ही मैंने एक सक्सेस स्टोरी और शेयर की, एक राउंड मास्टर की, उन्होंने भी बोला है जस्ट ब्लाइंडली फॉलो द सिस्टम, ठीक है। सिस्टम ये बोलता है कि अगर आपने वो काम कर लिया, नंबर ऑफ मीटिंग्स अटेंड कर ली, नंबर ऑफ मीटिंग्स अटेंड करवा दी, आपकी सक्सेस ऑटोमेट हो जाएगी। और उसका रास्ता जो है, वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ निकल के आता है, दैट इज फ्रॉम इन्विटेशन। इन्विटेशन के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। और ये एक ऐसा स्किल, आर्ट, साइंस, जैसा कि राकेश सर ने ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है, ये है कि इसमें आपको अपलाइन कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी, ये चीज आपको सीखनी ही सीखनी पड़ेगी। और ये हर बिजनेस में कॉमन है, हर बिजनेस में कहीं ना कोई क्लाइंट होता है, उसको इनवाइट करना जो है करना ही पड़ता है, और ये बिजनेस में नॉर्मल चीज होती है, राइट।
इतनी ब्यूटीफुल टेक्निक्स जो है वो राकेश सर ने एक्सप्लेन करी है, एक एक चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, इतना मतलब आपको इसको जितना मास्टर कर सकते हो, इस स्किल को मास्टर करो। जहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं, जैसे प्रोग्राम हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑफलाइन हो रहे हैं, उसमें सिर्फ आप लोगों को कनेक्ट करके जाओ और आप देखो आपका काम जो है वो बहुत होना आसान होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग दिस टॉपिक, और इस प्रकार के रेगुलर टॉपिक्स जो है अपने कंट्रीब्यूशन दीजिए इन्वेंसिबल सक्सेस सिस्टम में। क्लोजिंग है, फॉलो से अदर टॉपिक्स भी हैं हमारे पास में, तो उनमें भी अगर सब लोग अपना कंट्रीब्यूशन देंगे तो हम लोग बहुत बड़ा काम करेंगे, राइट। अच्छा, एक छोटा सा जो मैं अनाउंसमेंट है काइंड ऑफ वो करना चाहता हूँ कि अभी बैक टू बैक डेट जो है आपको इस महीने स्पेसिफिक होके अपनी पूरी टीम को अलाइन करते हुए, कॉल करते हुए आपको बताना पड़ेगा ये शेड्यूल है। आज मैंने जैसे शेयर किया तो मुझे नहीं पता था अवध बिहारी शुक्ला सर जो है वो वाराणसी का टिकट कर देंगे। मुझे नहीं पता था कि हमारे यहाँ पे हमारे राजेश सर है लखनऊ के, उन्होंने जो है वो लखनऊ का टिकट कर लिया उनके कुछ प्रोस्पेक्ट के साथ में। तो ये हमें नहीं पता था, जब हम लोगों ने शेयर किया तब ये चीजें जो है वो निकल के आई, और फिर बाद में जो है वो बातों बातों में पता चला। तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये इसमें प्रिडिक्शन ये मत पालिए कि मेरा नेटवर्क नहीं है वहां पे। आप बात छेड़िए, ऑटोमेटिकली आइदर कोई डिस्ट्रीब्यूटर या आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो निकल के आ जाएगा जो उस सेमिनार और इसको अटेंड करना चाहेगा। एंड पूरी ताकत लगा दीजिए 30 सितंबर को, चाहे आप सिटी में हो बाहर हो। मैंने इनिशियल डेज में जब नेटवर्क मार्केटिंग हुआ करती थी ना, उसका क्रेज ऐसा होता था, लोग आउटर कंट्री जो है वो ट्रैवल करके जाते थे जस्ट मीटिंग अटेंड करने के लिए, अपने अपलाइन को सुनने के लिए जो सक्सेसफुल अपलाइन होती थी। ठीक है, यहाँ से कोई व्यक्ति जो बाहर की कंट्री से आ रहा है, 70 लाख से 1 करोड़ रुपए महीना बना रहा है, हमको उनको इंडिया में सुनने का मौका मिल रहा है। तो इतना तो काम हम सभी लोगों को जो है वो मिलकर करना चाहिए। इसमें अगर हम लोग थोड़ी भी लापरवाही करेंगे तो ये हम लोग उसमें लापरवाह हो रहे हैं, राइट। तो प्लीज मेक श्योर इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट सब लोग मिलके उठाएं, और पूरा गेम इन्विटेशन का है, और अगर हम लोगों ने इसमें काम कर लिया तो हमको बड़ा गेम करने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू थैंक यू सो मच वितेश जी। और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए मीटिंग्स इतने सारे लाइंड अप हैं हमारे पास, जानते हैं एक चीज मुझे रियलाइज होता है कि जो लोग भी नेटवर्किंग आज फुल टाइम कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, देखो ये हर लोग तो फुल टाइमर नहीं है ना, लेकिन जो लोग फुल टाइम इस बिजनेस में कर रहे हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। नहीं मिलता है सर ऐसा मौका, ठीक है ना। आपको वहां पे जाना करना, हर जगह ट्रैवल करना चाहिए, पूरा जगह पे ट्रैवल प्लान बनाओ, वहां पर जाकर लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करो, मीटिंग्स में बैठाओ, और यही तरीका है कि हर लोकेशन में आप बिजनेस को आप अपने तरीके से बिल्डअप कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, और कंपनी का आप रफ्तार आपने देख ही रखा है कि इस लेवल पे काम चल रहा है, यानी कि कंपनी आने वाले टाइम में बहुत धमाल मचा रही है, बहुत बड़े लेवल पे काम होने वाला है, राइट। तो आज का जो प्रेजेंटेशन हमने आपसे शेयर किया इन्विटेशन के ऊपर है, इसके ऊपर हम लोग डेमो भी करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज केवल हमने एक प्रेजेंटेशन किया। अब देखिए बातें तो हमने यहाँ पे कर ली, राइट, लेकिन जब इसमें एक पॉइंट मुद्दा उठ के आएगा, जानते हैं क्या, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। अब वहां पे मैं लास्ट टाइम भी मेरी डिस्कशन हुई थी, लोग थोड़ा उसमें आगे पीछे मामला हो जाता है, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको हम लोग आने वाले टाइम में 5 दिन 7 दिन 10 दिन के अंदर एक मैं डेमो रखूं इन्विटेशन के ऊपर, जहां पे कुछ हमारे कुछ सिलेक्टेड चेहरे होंगे, जहां पे वो मुझे इनवाइट करूंगा, मैं बनूंगा प्रोस्पेक्ट, वो बनेंगे इनवाइट डिस्ट्रीब्यूटर, वो मुझे इनवाइट करेंगे, मैं कुछ ऑब्जेक्शंस करूंगा जो नॉर्मल जो हर जगह पे होता है। तो ये डेमो इसको हम लोग कहते हैं, राइट। और डेमो करके आपको भी दिखाएंगे ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आए कि यार इनविटेशन जब करते हो तो सामने वाला जब ऑब्जेक्शन करेगा तो इसको कैसे टैकल करना है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग है, लेकिन इन्विटेशन मेरे ख्याल से बहुत लंबा और काफी टाइम के बाद आपके सामने एक प्रेजेंटेशन रखा गया है। तो इन्विटेशन के ऊपर मास्टरी कीजिए और सीखिए। गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर घने इंफॉर्मेशन पड़े हुए हैं, जाइए वहां से टेक्निक। ये प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाया है इसमें कई सारे पीपीटी जो है, कई सारे पॉइंट्स ऐसे मेरे अपने डेवलप किए हुए नहीं है, मुझे पता है सारी चीजें कैसे करते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने अपने खुद से डिजाइन कर लिए, कुछ पॉइंट्स मुझे गूगल और ये सब जगह से मैंने सेलेक्ट किया। ये काम आप भी कर सकते हो, मैंने कोई ऐसा काम मैं नहीं कर रहा हूं जो बाकी लोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप भी जाके सर्च करोगे तो आपको भी मिल जाए, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। आप लोग अपने अपने लेवल पे कंटेंट रेडी कीजिए, देखिए इनविटेशन और क्या है। आप लोग आपस में जैसे 5 लोग हैं, 5 लोग कनेक्ट हो जाइए फोन पे, एक दूसरे को इनवाइट कीजिए, तीसरा आदमी सुनेगा। जैसे मान लो एक मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी जैसे राजेश झा ने भी हाथ उठाए हुए हैं, राजेश झा जी हैं उनकी टीम में। तो झा साहब मैंने आपके एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसको, आप ऐसा नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसमें जैसे क्या करिए कि आप 5 लोगों को कॉल लाइन पे ले लीजिए, ठीक है ना। अब उसमें आपके टीम में एक व्यक्ति है XYZ, ठीक है ना, एक्स को बोला आपने कि यार आप उसको इनवाइट करो, और सामने वाला बंदा जो है वो जानबूझ के कुछ ऑब्जेक्शन हैंडल करेगा। अब वहां पे राजेश जी एज ए अपलाइन वो सुनते रहेंगे,
ठीक है ना, यार तो यार वो चलो ठीक है, ऑब्जेक्शन आ गया, आप देखते हैं क्या जवाब देता है ये प्रैक्टिस कभी कभी करना चाहिए टीम के अंदर। इससे क्या होगा ना, एक इंजॉयमेंट भी होता है और आदमी सीखता है, ठीक है ना। अदरवाइज मैं आने वाले टाइम के इस आपको मैं डेमो करके तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, आपको इन्विटेशन पे मास्टरी करनी, बस इतना याद रखना मेरी बात। इन्विटेशन पे अगर आपने मास्टरी कर ली, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जिस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है उनके इवेंट्स लगातार हो रहे हैं और आने वाले टाइम में भी होता रहेगा। उसके अलावा कई सारे यहाँ पे टीम है जो ऑलरेडी कई सारे इवेंट प्लान कर रहे हैं, अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, अपने उनका पर्सनल मीटिंग्स और सेमिनार्स हो रहे हैं अलग अलग जगह पे। दैट मींस आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको केवल इन्विटेशन में मास्टरी करना है। इन्विटेशन में आपने मास्टरी कर लिया, काम हो गया। और ये चैलेंजिंग है, मैं कह रहा हूँ ये चैलेंजिंग भी है। 10 लोगों को इन्वाइट करोगे, कितना भी अच्छा इन्वाइट कर दो, रिजल्ट रेशियो आएगा वही, आपको 30%, आपको 10 लोगों को बोलोगे तो 3 लोग आपकी बात सुनेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप मास्टरी करते चले जाओगे वैसे वैसे जो है आपका देखना रिजल्ट का जो रेशियो है वो बनता चला जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा, राइट। लेकिन हमें करना पड़ेगा स्टार्ट, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप अपने घर में ही लोगों को इन्वाइट करो। एक बार कुछ नहीं समझ में आता है तो अपने ब्रदर जो आपके फैमिली मेंबर्स में चले जाओ ना, आप अपने फादर को बोलोगे पापा मैं आपको नेक्स्ट दिल्ली वाले मीटिंग के लिए मैं इन्वाइट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप बात करो उसी टेक्निक, बोलो उनको, और आप अपना ऑब्जेक्शन उनके फादर को पहले बोल देना कि आपको जाना है नहीं जाना, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो आप अपना कुछ एक्सक्यूज देना तो दीजिए, उसको मैं टैकल करूंगा। घर में ही डिस्कशन स्टार्ट कर दो ना, घर में ही डिस्कशन स्टार्ट कीजिए तो एक फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है इसके अंदर, तो और मजे की बात है। तो बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। इसके इन्विटेशन बहुत ही मेरा एक चहेता टॉपिक है, मैं कुछ पॉइंट्स ज्यादा कवर करने पड़ गए इसलिए उसका कुछ रफ्तार में मैं निकल गया, लेकिन आपको इन्विटेशन के ऊपर मास्टरी करवा देंगे। बस आप इतना दिमाग में रखना कि जब इन्विटेशन का नेक्स्ट शेड्यूल्ड मीटिंग जो भी होगा उसको आप अटेंड जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट जो होगा वो थोड़ा इससे ऊपर लेवल पे जाएगा जहां पे डेमो भी होगा, और अपने टीम को भी इन्वाइट करना, राइट। तो इतनी सारी बातें हैं। राजेश जी आपने हैंड रेस किया, कुछ कहना चाहते हैं? आपको अनम्यूट किया है मैंने। सर हाँ सर, एक चीज हमें बहुत जबरदस्त इनविटेशन में ध्यान रखना होगा, क्योंकि मेरा भी ये 25-26 साल का एक्सपीरियंस है। यस हमें किसी भी हालत में पेशेंस लूज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला ना कि प्रॉब्लम है नहीं आ सकते, अरे भैया आज के बाद ना आपसे बात नहीं करेंगे, यार क्या बात करो, ये कोई भी इनविटेशन फाइनल नहीं होता है। और दूसरा एक गलती जो मैंने टीएस मदान सर ने सिखाया है, कभी भी पिछले इनविटेशन में कोई नहीं आया तो अगले इनविटेशन में उसको याद नहीं दिलाना है, देखो भैया हमने किसको बुलाया था और आप मना कर दिए नहीं आए, इस बार जरूर आना। कभी नहीं, ब्लंडर करेंगे आप। अगर आपने वो कर दिया तो आपने कत्ल कर दिया, वो दूसरी मीटिंग में भी नहीं आएगा। उसको याद ही नहीं कराना है, कभी नहीं याद कराना है उसकी गलती को। अरे सर बिल्कुल सर, अब क्या गजब अपॉर्चुनिटी हो, वो याद भी कराए ना, सॉरी यार मैंने, अरे नहीं सर, अरे सर आगे का उस पर चर्चा ही नहीं करना है सर, ये मैंने सीखा है मतलब। और चूंकि ईश्वर की कृपा से ना इनविटेशन मेरा फेवरेट टॉपिक है और जबरदस्त है, मैं तो कई बार पकौड़ा खिलाने के लिए भी बुलाता हूँ, अरे सर स्नैक भी है, मतलब किसी भी माध्यम से कैसे आएगा वो बहुत बेस्ट है। मतलब अभी जैसे समझे, अभी 30 के लिए ना मैंने समा बांध दिया अपनी टीम में, भाई साहब यदि इस मीटिंग को मिस किए तो भाई साहब इंपीरियल बनोगे ही नहीं, बहुत गए काम से। तो कहने का मतलब है थोड़ा सा वो एक चीज आ जाएगा और वो प्रैक्टिस से आता है सर। और इनविटेशन के दौरान हमें अपने कान को बहुत ही खोल के रखना है। हालांकि हमारा मुंह चल रहा है, उस समय हमारा कान ना बहुत ध्यान से सुनना चाहिए वो कुछ बोल रहा है क्या। तो सर और आपका टॉपिक सुन के तो और ब्रशअप हो गया मैं तो। नहीं राइट है राजेश जी, बहुत ही शानदार आपने बात बताई। और नेक्स्ट टाइम से कुछ जैसे आपने कहा कि आपका इनविटेशन आपने इस पे आपने आपका होल्ड अच्छा है, तो मैं ये भी चाहूंगा कि आप भी जब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इनविटेशन के ऊपर रखेंगे तो मुझे 2-4 लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, वो अकेले में नहीं कर सकता। जब बात डेमो की होगी, डेमो में अकेले नहीं कर सकता, मुझे कुछ पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो आप रहना मेरे साथ और हम लोग उसको और मिल करके और शानदार तरीके से इसको लेकर के जाएंगे। पक्का सर पक्का, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके साथ, प्लीज। राइट जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। शाहिद आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ऑडिबल सर? यस। ओके। क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि जैसा कि राजेश सर ने यहाँ पे ये बताया कि कभी भी उनका जितने टाइम का उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि 25-26 ईयर्स में कभी भी आपको अपना पैसेंस लूज नहीं करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पर ये है कि जब भी हम इनविटेशन करते तो अभी सर को देख के ही मुझे ये समझ में आया कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब आप किसी को इनवाइट करते हो तो उस समय एक्साइटेड रहना।
आप जितने भी लोग यहाँ पर हो, आप सभी लोग देख सकते हो कि जब भी कभी भी राजेश झा सर को आप देखते हो तो इनका क्या होता है, ये किसी भी मोड में रहते हैं, यानी कि एक तो क्या होता है, हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एक्साइटमेंट नहीं है ना आपके अंदर, तो वहां पे आप किसी भी तरीके से आप कैसा भी इन्विटेशन दे दो, वहां पे सामने वाला उसको जो है नॉर्मल लेकर चला जाएगा, राइट आप, और वो आपको जो है मूव ऑन कर देगा। तो एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है। और सेकंड पॉइंट, हमेशा जल्दी में रहे, जैसा कि अब राजेश सर को देखते हो कि वो बोलते हैं और बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो ये जो है बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ बात करो और उसको इनवाइट करो किसी भी चीज के लिए, तो वहां पे सिंपल आपको यही ध्यान रखना है, एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। सेकंड चीज, हमेशा जल्दी में रहे, कभी भी उसको मतलब सामने वाले को आप इतना बिजीनेस दिखाइए कि आपके पास समय नहीं है उससे बात करने के लिए, तो वो आपकी वैल्यू करेगा और देन आपको वो सुनेगा कि हाँ क्या अपॉर्चुनिटी है और किस चीज के लिए जो है आप इन्वाइट करो। तो बस ये सारी चीजें हैं। बाकी तो काफी अच्छा प्रेजेंटेशन रहा सर, और मजा आया काफी, और काफी चीजें जो है वापस से रैप अप हुई है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। राइट शाहिद, थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन। और देखो इसमें मैंने अब ठीक है, मैं ये सारे पॉइंट्स मैंने ऑलमोस्ट डाला हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ शाहिद, क्योंकि इन्विटेशन के ऊपर आपने भी काफी सारे कंटेंट रेडी की, जितना मेरे को याद आ रहा है, तो नेक्स्ट जब हम लोग कुछ प्लान करेंगे तो हमें चार पांच या छह लोगों की एटलीस्ट मुझे रिक्वायरमेंट होगी। तो आप अपना कुछ, अगर आपके पास कंटेंट है तो राजेश झा आपसे भी मैं कह रहा हूँ कि कुछ कंटेंट रेडी कर लीजिएगा, और शाहिद आप भी कुछ कंटेंट रेडी कर लीजिएगा। देन हम लोग उसको अगेन अपने लेवल पे फिर एक फाइनल करेंगे, जहां पे कुछ डेमो करके दिखाएंगे, और वो होगा एक्चुअल में वहां पे टेस्टिंग, ठीक है ना। और वहां पे आपको जितना मजा आएगा, वहां पे आप हंसोगे भी, लोटपोट भी करोगे, और आपको लगेगा यार ये क्या एक्चुअल में जो बिजनेस में इन्विटेशन के दौरान जो चीजें चैलेंजेस आते हैं वो आपको लाइव देखने को मिलेगा। उसके लिए करेंगे, इट विल टेक सम टाइम, अभी हड़बड़ाइएगा नहीं, लेकिन उसको जल्दी हम लोग आपके सामने रखेंगे। यस रितेश जी। यस, एक छोटी सी चीज जो है मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, जस्ट आपको ये सभी लोगों को ये बताने के लिए कि कोई व्यक्ति जब बिजनेस के प्रति सीरियस है तो वो किस लेवल तक इस बिजनेस में इनविटेशन को लेके जा सकता है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारी टीम में मौजूद है। इनका नाम है रमेश जी, ये स्पेशल एजेंट है, ये है हैदराबाद के। रमेश जी हैदराबाद से मुंबई अपने प्रोस्पेक्ट्स को लेके ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी टीम को लेके ट्रैवल कर रहे हैं एक सेमिनार में। फर्स्ट सेमिनार ये हो गया। सेकंड सेमिनार जो उनका हो रहा है 30th का, उसमें करीब करीब जो है वो कुछ इनविटेशन लेके आ रहे हैं, और 11th नवंबर की उनकी प्लानिंग है, लगभग 20 से 30 लोगों को जो है वो अपनी लीडरशिप को वहां पे लेके आएंगे, हैदराबाद से वहां लेके आएंगे, राइट। उन्होंने बैंगलोर का सेमिनार अटेंड किया था, उसके बाद में जो है ये इम्पैक्ट, और ये उनकी ये जो एक्टिविटी भी निकल के आई है वो भी एक सेमिनार में जो है वो सेमिनार समझने के बाद में निकल के आई है। तो इससे मतलब अगर आपने इस लेवल तक अपने आप को अगर पॉलिश कर लिया, इस लेवल तक अगर अपने आप को ये लेके चले गए कि हाँ यार कहीं पे प्रोग्राम हो रहा है, मुझे किसी तरीके से फिजिकल प्रेजेंस जो है वो दिखानी है। जो मैंने इसके पहले भी बताया कि बहुत सारे लोग जिन्होंने जूम के थ्रू, अपनी अपलाइन के थ्रू, एक छोटी छोटी मीटिंग्स, इनविंसिबल की मीटिंग के थ्रू या होम मीटिंग्स के थ्रू एटमी को समझा है, वो एटमी नहीं है। एटमी का एक विशाल रूप जो है वो आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो प्लीज मेक श्योर, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि आप उसको एक कैंपेन चला दीजिए 30 डेज का, है ना, और डेडिकेटेडली आप जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट कीजिए सेमिनार अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मुझे याद है, और मुझे जब मैं इस तरीके से देखता हूँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करना, तो वो मुझे कुछ अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब उस वक्त भी मैं 21-22 साल का हुआ करता था। तो मेरी टीम 3 बस में आई थी। वो एक ट्रैवल, उस समय का मोड अलग था, काम करने का स्टाइल डिफरेंट था, और 3 बस हम लोगों ने बुक कराया था, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल कर रहे थे। वो सारा कन्विक्शन का खेल है, ठीक है ना। अगर आपको जिस लेवल की ट्रेनिंग मिली, जिस लेवल का कन्विक्शन है, आदमी दुनिया आज एडी फोर्टे यूएसए से उठ करके हिंदुस्तान में 3 महीने के लिए आकर प्रोस्पेक्टिंग कर रही है, अपनी टीम को बिल्डअप कर रही है, यूएसए से आकर हिंदुस्तान में। और हम लोग यहाँ पे अगर अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी अगर ट्रैवल करने में सोच रहे हैं, तो आपके विजन में और आपके कन्विक्शन में और उस लेडी के कन्विक्शन में और उसके विजन में जमीन और आसमान का डिफरेंस है साहब। वेल सेड सर, वेल सेड। ठीक है ना। तो ये हमें इस बिजनेस में अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। हिंदुस्तान हो आने वाले टाइम में, आप तो आज मैक्सिमम जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी लोग आज यहाँ पे सेमी सेल्स मास्टर हो, चाहे स्पेशल एजेंट हो, सबकी टीम कहीं ना कहीं बाहर भी है। तो क्या लगता है कि आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा? आज नाइजीरिया में, श्रीलंका में टीम ओपन होगी, बांग्लादेश में लोगों की टीम है, तो क्या कलकत्ता आप बांग्लादेश ट्रैवल नहीं करोगे? करना पड़ेगा, करना चाहिए। और यही है बिजनेस। जब बात ग्लोबल बिजनेस की करते हैं तो ग्लोबल लेवल पे ट्रैवलिंग भी होगी, ग्लोबल लेवल पे सारे काम भी होंगे। जब बिजनेस मिलेगा, टर्नओवर होगा, सब कुछ होगा, तो आप ट्रैवल भी करोगे। तो हमें उतना ब्रॉड माइंड लेके चलना है। बिजनेस ऐसे ऐसे कोने कोने में काम करने वाला नहीं है, इसको ओपन टू ऑल करना है, बड़े लेवल पे खेलना है, राइट।
तो इस कन्विक्शन से इस बिजनेस को आगे बढ़ाइए। और रहा बात इन्विटेशन का, इन्विटेशन का ऑलमोस्ट 30-40% पार्ट मैंने आज कवर किया है, ऑलमोस्ट 50-60% जो चीजें हैं वो बची हुई है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो होगा रोल प्ले। रोल प्ले बोल लो या डेमो बोल लो आप, राइट। तो रोल प्ले एक्चुअली होता है, रोल प्ले के अंदर हर एक डिफाइंड रोल रहेगा, वहां पे मैं क्या सवाल करूंगा, ये क्या ऑब्जेक्शन करेगा, उसका कैसे जवाब देना है, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। और वो भले ही आधा घंटा का हो चाहे 1 घंटे का हो, आपको समय का भी पता नहीं चलेगा, राइट। तो उस सेशन को जरूर अटेंड करना, अगर वो मिस कर गए तब तो फिर कोई उपाय नहीं, राइट। दीपक प्लीज अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर। सर आज का सेशन काफी अच्छा था, और जो इनविटेशन है वो सबसे पहला एक कहते हैं ना प्रोस्पेक्टिंग के बाद टूल होता है किसी को इनवाइट करके और फिर टेबल तक लाना, किस प्रेजेंटेशन में लाना। ओके, तो इसमें जो आपने रोल प्ले बोला, इसका सबसे बड़ा रोल ये है कि रोल प्ले जो होता है ना वो आपकी हेल्प करेगा गलतियों को इंटरनली करने के लिए। आप एक्सटर्नल गलतियां नहीं कर सकते, मतलब कि ग्राउंड पे जाके आप 0 पे आउट नहीं हो सकते। ओके, तो जितनी बार आउट होना है ना पिच पे, जो नेट प्रैक्टिस है वो आपकी ये रोल प्ले हेल्प करेगा। तो जो भी हमारी टीम है, तो जितना हम उनको मतलब ये एक मतलब होता है कि 1-1 घंटे का, अगर मान लीजिए आप 4 लोग 5 लोग है ना, तो जो बचपन में हम लोग गेम खेलते थे ना कि हाँ ठीक है कोई चूल्हा चौका वाला बना लिया, कुछ भी कर लिया, मतलब कि नौकर वोकर का गेम खेल लिया, तो ऐसे ही अगर आप ये रोल प्ले करोगे ना, एक तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग, मतलब मजा आएगा इसको आपको करने में, ठीक है। और दूसरा इसमें आप इतनी चीजें सीख लोगे ना, जो आदमी बोलना नहीं जानता है ना वो बोलना सीख जाएगा, कहाँ उसके वीक पॉइंट्स है वो उस पे काम करना शुरू कर देगा। ओके, और वो जो हम बात जो शाहिद ने भी बोला, और सर का जो एक्साइटमेंट लेवल बताया, वो वाकई में बहुत ही क्रूशियल रहता है उस टाइम पे। ओके, तो रोल प्ले में वो एक्साइटमेंट लेवल भी, जैसे कहते हैं ना पार्क में जाकर सुबह लोग हंसते हैं, ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस होती है, शुरू दिन में एकदम सबको पागल लगते हैं, बट नेक्स्ट डे से वो करते करते वो अपना जो लेवल होता है ना वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। तो वही चीज है कि रोल प्ले में लोगों का एक्साइटमेंट भी बढ़ेगा, नॉलेज भी पड़ेगा। और रोल प्ले एक तरीके का नहीं होता, अच्छा यहाँ पर है ना एक तरह से कहते हैं एक्टर बनना। एक्टर कौन होता है? जो सामने वाले के रूप में ढल जाए, उसको कोई भी रोल दिया जाए वो उसको अच्छे से निभाएगा, वही अच्छा एक्टर होता है। तो सामने वाला, मान लीजिए आपको नहीं पता कैसा प्रोडक्ट वो प्रोस्पेक्ट मिल जाए, ठीक है, तो कैसे प्रोस्पेक्ट से आपको कैसे बात करनी है वो आपको रोल प्ले में खुद समझ में आएगा। और वो जो राकेश सर बता रहे हैं कि अगली बार आधे घंटे का पौने घंटे का होगा ना, तो वो रिकॉर्डिंग आप रखिएगा, वो आपको अपने टीम में इंप्लीमेंट करने के बहुत काम आएगा। ओके, कि आप उसके थ्रू है ना आप मजाक मस्ती में भी रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको एक ब्रेक लेना है, चल यार रोल प्ले करते हैं, मतलब कि मैं ये बन जाता हूँ कि भाई मैं दुकान पे काम कर रहा हूँ, अब तू मुझे कॉल कर, ऐसे फलाना जो भी है, आप एक सिचुएशन क्रिएट कीजिए। वो सिचुएशन रियल में कभी ना कभी टकराएगी आपके साथ, ये फैक्ट है। कोई ट्रैवल करते हुए रोल प्ले हो रहा होगा, ठीक है, कोई रास्ते में वॉकिंग करते हुए रोल प्ले हो रहा होगा, किसी ना किसी टाइम पे हो रहा होगा। और रोल प्ले में एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग का बहुत मैटर करेगा कि आप कॉल कब रहे हो, ठीक है। सपोज आपने सुबह 9 बजे किसी को फोन कर दिया, तो किसी के पास टाइम होता ही नहीं, ऑफिस टाइम होता है सबका, ठीक है, तो उसमें आपको डे भी मैटर करना पड़ेगा। मान लो कोई दिवाली के पटाखे फोड़ रहा है और आप उसको कॉल करके उसको इनवाइट कर रहे हो, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको शोर में आपको क्लैरिटी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। तो रोल प्ले में काफी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ओके, थैंक यू सर। राइट, थैंक यू सो मच दीपक। और मुझे चौथा व्यक्ति मिल गया, और मुझे 2-3 और लोग और चाहिए, वॉलंटियर मुझे चाहिए। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो इस रोल प्ले में पार्टिसिपेट करने का, तो आप 100% मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा, राइट। मुझे 6-7 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो अभी दीपक है, शाहिद है, राजेश जी है, मैं हूँ, रितेश जी रहेंगे अपने साथ, है ना। और एक दूसरे अगर कोई आना चाहता है, कोई इंटरेस्टेड हो, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके कीजिएगा। फिर हम लोग कुछ प्रैक्टिस, कुछ हम डिस्कशन करेंगे, किसको क्या रोल प्ले करना है, रोल में किसको क्या रोल देना है, वो करके हम लोग आपके सामने फिर इसको हम लोग डिस्प्ले करेंगे। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जब भी करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग होगा, राइट। तो आज जो पार्ट था इन्विटेशन का, उसको हम लोगों ने कवर किया। और प्रीतेश, यस प्लीज, आपको अनम्यूट किया है सर। या राकेश जी, मैं भी इंटरेस्टेड रहूंगा रोल प्ले के लिए। एक्सेलेंट, ठीक है, डन। यस, थैंक यू सो मच। और भी है, जैसे भी अगर आप जो जिसको जो समझ में आया, ऐसा मत समझिए कि 6-7 लोग हो गए तो अपनी बोलना, आप अपना मुझे बोलो ना, आप कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे उसको, ठीक है ना। एडजस्ट याद आया, मैं एडजस्टमेंट पे एक वीडियो भी डाला था उसको मैं खुद ही बार बार देख रहा हूँ। और खैर वो अपनी अलग चीज है। आप लोग अपने देखिए, एक चीज और आप लोग करना है कि जब सेशन होता है ना, कोई भी हम लोग जब टॉपिक रखते हैं, इसको बड़े लेवल पे प्रमोट कीजिए।
गेम यहीं से आपके बदलेगा और ये नंबर्स बढ़ने चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट नंबर्स गेम। इस मीटिंग्स में आपके नंबर्स तब बढ़ेंगे जब आप नंबर बढ़ेगा, तब मैं समझ में आएगा कि एक्चुअली में इस मीटिंग के लिए भी आप लोगों को इन्वाइट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है ना, यहाँ पे नंबर्स नहीं बढ़ते हैं या नंबर कम होता है, वो भी एक रीजन है कि कहीं ना कहीं इन्विटेशन में लोगों की प्रॉब्लम है, लोग इन्वाइट नहीं कर पा रहे हैं अपनी टीम को, राइट। आप अपने टीम को इन्वाइट नहीं कर पा रहे हैं तो नए लोगों को इन्विटेशन करना और मीटिंग में लाना तो चैलेंजिंग हो गया ना, कितना बड़ा चैलेंज हो गया। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को जो पिछले 1 साल से है, कुछ 6 महीने से, कुछ 4 महीने से, अगर उसको मीटिंग में नहीं ला पा रहे हैं तो नए लोगों को आप सेमिनार में 400 रुपए खर्च करा करके ट्रैवल करा के कैसे मीटिंग में लाओगे? दैट मींस प्रॉब्लम इज इन इन्विटेशन। सिंपल सी कैलकुलेशन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर मास्टरी करनी पड़ेगी आप, और कोई उपाय नहीं, और यहाँ कोई मदद नहीं कर पाएगा, ठीक है ना अपलाइन कर पाएगा, ना कोई क्रॉस लाइन कर पाएगा, ना डाउनलाइन कर पाएगा। आपको इसमें मास्टरी करनी है। और ये एक चीज मैं बताऊं, बड़े आसानी से मास्टरी कर लोगे आप, बहुत आसानी से। इसमें कोई टेक्निक का कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, बड़े आराम से बस। लेकिन इनविटेशन का जब सेशन हो तो मिस मत कीजिएगा, इसको इतना ध्यान रखिएगा। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ये आज का सेशन अटेंड किया और इतना समय आप लोगों ने दिया, राइट। और आई होप सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी रखी है। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग वापस मिलेंगे, और तैयार रहिए। जो हमने 6-7 अपने मीटिंग्स हो रहे हैं, अलग अलग मीटिंग्स जो हो रहे हैं, तैयार रहिए, अपना 100% दीजिए। वो चाहे दिल्ली का हो, चाहे गुवाहाटी का हो, जहां जहां मीटिंग हो रहा है वहां अपने लोगों को प्लग इन कीजिए। प्लग इन कीजिए, बहुत जरूरी है। स्मार्टली बिजनेस कीजिए। 7 स्टेट में आपको जाने की जरूरत नहीं है। इन्विटेशन अगर स्ट्रांग है तो आप यहां से बैठ के उनको इन्वाइट करोगे, वहां पे कनेक्ट करवाओगे, वो बंदा जाएगा, मीटिंग अटेंड करके आएगा, राइट। इन्विटेशन दीपक गुप्ता ने अभी बैंगलोर में बैठ के एक लेडी को भेजा, खुद नहीं गए बैंगलोर को, लेकिन उन्होंने इनवाइट किया अपने एक प्रोस्पेक्ट को, अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर को जो बैंगलोर में है, और उनको बोला कि इस सेशन का यहाँ मीटिंग ऐसे ऐसे हो रहा है। उनका टिकट बुक करवाया, उनको बोला कि आपको ऐसे ऐसे करके पहुंचना है। वो पहुंची और अपनी बेटी के साथ वहां पे गई, अटेंड करके है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस तरीके से काम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें भी उस चीज की मास्टरी करनी पड़ेगी, हम सभी लोगों को उस चीज पे मास्टरी करनी पड़ेगी। अगर आपने यहाँ बैठे बैठे अगर आप दूसरे स्टेट के अलग जगह पे लोगों को इन्वाइट करके मीटिंग में बैठा दिया, मतलब आप इन्विटेशन में मास्टरी आपकी हो गई है ऑलमोस्ट, ये मान के चलना, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। और 30 सितंबर को तैयार रहिए। वापस हम लोग को टिकट बुक तो करवा लिए, वहां पर सबसे अपनी टीम से वापस मुलाकात करेंगे। और जितने सारे भी इवेंट हो रहे हैं वहां जहां जहां पॉसिबल हो पाए आप ट्रैवल कीजिए, मिलिए लोगों से, बातें कीजिए और बिजनेस को बिल्डअप कीजिए, क्योंकि अक्टूबर पूरा ब्लैंक जाएगा, राइट। अक्टूबर में जितने सारे फेस्टिवल्स हैं, इसलिए सारी चीजों को सितंबर में लोग कवर करते जा रहे हैं, राइट। तो सितंबर का फायदा उठाइए, और जहां जहां एक कंपनी के इवेंट्स हो रहा है वहां अपनी टीम को प्लग इन कीजिए, राइट। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।